Welcome to the Horsemouth Podcast. It's my excuse to meet fascinating people and learn how they approach work, creativity, and problem solving. My guest today is a hilarious comedian best known for his highly imaginative and viral sketch comedy reels on Instagram, as well as his sharp and slick observational stand-up sets. An academically gifted student, he left behind a promising career as a chartered accountant in 2015 to step onto the comedy stage. His journey began at the Comedy Carnival in Nagpur, and by the following year, he was performing at the Canvas Laugh Club in Mumbai. Since then, he has graced bigger and better stages across India. Earlier this year, he co-wrote a series of jokes for Shah Rukh Khan and Sunil Grover for their act at the Zee Cine Awards 2024. He is also credited as a writer, editor, director, lyricist, and actor in several notable projects, including his humorous collaborations with his friend Viraj Ghelani. Just last month, they performed their highly acclaimed Gujarati comedy show at the Richmond Theatre in the UK. This evening, however, in the logical equivalent of mixing tari poha with gulab jamun, he has agreed to be on my podcast. I am excited to dive into his writing process, performances, and experiences co-creating comedy with his friends. To stay updated on his upcoming projects, follow him on Instagram at Jitesh K. Vasani and check out his exclusive merch store at jiteshvasani.merise.io. That's jiteshvasani.merise.io. And now, please enjoy my conversation with Jitesh Vasani. Welcome. Hello, hi. Thank you so much, Shubhankar, for having me. Thank you so much for that lovely introduction. ऐसा खुद के बारे में कोई और लिखे तो सुन के अच्छा ही लगता है mostly. हाँ. So, Jitesh, now before we begin talking about your writing process and everything, I wanted to just set the score right. You may think that you are better than me because you were the Blue House captain, but let me tell you that I was the vice captain, so I think the hierarchy is settled here. I mean, you said it yourself. I mean, I was not going for hierarchy, but captain, vice captain, you know how it is. Right? Yeah. And I was also the Blue House the winning captain. The champion. So, the champion, yeah. Of course. But you've stalked me well, man. मतलब, you took me back to 2015 and all. मतलब जो बातें मैं भुलाना चाहता हूँ कि मैं CA करता था वो वापस याद दिलाने के लिए. And by the way, you are the second CA dropout on our show. Who else? Mithilesh Wasalwar. Oh yeah, he's also. What is it about taxes that just stops people in their path and makes them want to pursue other careers? I mean, it's in the name. It's taxing, right? Makes sense. Okay. Anything with taxes, I don't think it's my cup of tea now. कि taxes भरना भी होता है तब मेरे को I'm taken in the flashback of कि यार the trauma कि ये सब कैसे होता है मुझे पता है but मैं नहीं जानना चाहता. I want to somehow remove that portion of my life, but it's not possible. So I live with it. You don't want that to be your thing that you know known. I mean, I don't want that information in my head. कि जब like whenever it's 31st March के आसपास मेरे को trauma क्यों होता है मुझे नहीं पता. मुझे नहीं चाहिए वो trauma but होता है. Okay, cool. So now let's start talking about your process. There's no easy way to jump into this, so I'm not good at segues, but that's something I need to learn from you. Let's start talking about your process in general. We'll explore stand-up comedy. We'll explore your comedy writing as well. Yeah. You tell me, what is the first step in writing a joke? So, see, every comic will have his or her own way of going about it. I'll tell you what works for me mostly when it comes to stand-up or when it comes to sketch writing or any form of writing for that matter. As a writer yourself, you would know कि जब आप राइटिंग करने अगर बैठ रहे हो तो डिपेंडिंग अपॉन वेयर आर यू एट बट नंबर ऑफ आवर्स खाली डॉग के सामने ही देख के अपनी जिंदगी को आप सोचते रहते हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. क्योंकि जब आप लिखने बैठोगे तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे. दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो लर्न फ्रॉम माय अदर राइटर फ्रेंड्स एंड ऑल. सो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि आई फेल्ट लेस सैड अबाउट माई सेल्फ कि मैं अकेला नहीं हूँ जो डॉग खोल के बैठा रहता हूँ खाली. ये प्रोसेस है. सो व्हाट हेल्प्स मी इज व्हाइल आई एम लिविंग माई लाइफ if I feel like there is now a radar that is always on ki this is funny or this made me laugh, right? So those things either I try to put it on my notes in your notes app or the other way I've started doing is, and this is the one of the best parts that has come out of my marriage, is I talk about it to my wife a lot, so that like I kind of feed her again and again with a certain thing. And so she's your living journal. Yeah, exactly. And then when I want to, like when I sit and create, I ask her कि मैं तेरे को
उस दिन ये चीज के बारे में क्या बोल रहा था ज्यादा, एंड शी वुड रिमेम्बर इट क्योंकि वो अनॉय हुई है उससे. तो या शी इज माय नोट्स ऐप आल्सो. तो इट्स मोस्टली दैट आई हैव रियलाइज्ड दैट इफ समवन मेक्स मी सिट एंड राइट समथिंग देन आई कांट डू इट. ऑफ कोर्स इन प्रोजेक्ट्स लाइक Zee Cine Awards and when we are writing for other brands, definitely there you have to like be in a more structured manner, but there what helps is there is a creative energy all around. There's a writing room, so you get to soundboard, you get to discuss a lot of aspects of writing and jokes and with people around you. So for me, I know that stand-up comedy or writing is a very solo art form, but I can't do it alone. So I figured out my own ways to, either discuss it with my friends. And this is something that has evolved, or was it? It has evolved. क्योंकि बीच में तो मैं बहुत ज्यादा like there was a downer, an entire phase where I thought कि मैं नहीं कर सकता हूँ ये चीज यार, ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है. But then the more people you meet who are doing, like for example, me and Viraj, we are working together for like the past 3 years now. So and he is at the like where he is at. Like when I see his process, my life becomes easier कि यही है ultimately जो विराज भी कर रहा है. If this works, then maybe it'll. Yeah. So he has done it more. He has been doing it for a longer time. He has found his audience and he knows his audience. So this is something that I've learned from him also. कि there might be certain jokes or certain ideas that you wouldn't feel like doing, but then ultimately you're doing it for your audience, right? So you are happy pandering to your audience. Like sometimes, not always. Sometimes I am like. With Nagpur Reels, now I'm at a phase where I feel that मैं और क्या ही निकालूं इसमें. Like I see that now you're venturing into Pune, Bombay, and that kind of stuff also. Yeah, and that is also very organic because that is also a response that's a feedback, right? That I'm getting from people. So I've learned that there are a lot of people from Nagpur who are based in Mumbai now. Who go through the same emotions that I'm going. Yeah, the same beats. So the same beats of life. Or like for example, I just put up a random story once about Duranto, right? Nagpur to Mumbai, Mumbai to Nagpur, and I was like, इसका pass बनता है क्या? And the response that I got, I learned it then and there that this is something that so many people go through, right? Right. You can definitely sit and think about all these things, but I think that might or might not come. So to summarize it or to cut it short, like I feel you don't find the joke finds you. So one of the things that you mentioned in one of your other interviews was that this radar that you mentioned, this always in the lookout for jokes. It is kind of getting toxic sometimes. It gets toxic because then and this is a very comic problem where you are not supposed to laugh everywhere and anywhere, right? But then तुम्हारा तो वो switch on ही है ना यार कि so as the popular formula goes that tragedy plus timing is comedy, right? Yeah. But कभी-कभी वो timing ऊपर नीचे हो जाते हैं कि तुमको पता है like, and as a writer you also, I think you must have gone through that phase or you must be there. I don't know exactly, but I'm sure you will also know this कि कहीं ना कहीं वो nihilism आ जाता है, कहीं ना कहीं disdain towards society हो जाता है. मतलब your empathetic senses are kind of drowned. You are not able to relate to the reality of the situation. Yeah. Okay. And it's a paradox because sometimes like I have also heard a lot of people say that for you to do comedy you should be empathetic enough. तो वो थोड़ा बहुत confusion तो like I have to deal with it. So toxic हो जाता है. That also I learned after marriage. कि when your wife told you. Yeah, when my wife told you कि बस कर अभी like ये क्या है तेरा तो. Yeah. That's spiraling. Yeah, it's spiraling. Okay. Let's go back a little. This is like a classic comedy podcast question, which is, were you the class clown? Yes. But you were also academically inclined. I was also academically inclined. So I was not the stereotypical class clown who was like always thrown out of, like I was not the last bencher and I was not that. But during my school days also, I realized it much later. Like, and I exactly remember the incident when one of the teachers mentioned that about my sense of humor. तो मेरे को तब पता चला कि अच्छा इसको sense of humor बोलते हैं और ये मेरे पास है. That was a realization. But this was in St. Xavier's? This was in Center Point. Center Point. When I was in 7th or 8th standard. Vardhaman Nagar. But most of it comes from where I live. So
मैं ईस्ट नागपुर में रहता हूँ, वर्धमान नगर साइड, और मेरे ज्यादातर दोस्त लाइफ में मेरे से बड़े ही हुए, लाइक इन एज दे आर ओल्डर टू मी, एंड स्कूल में तो ऑफ कोर्स क्लासमेट्स आर योर फ्रेंड्स, सीनियर्स आर योर फ्रेंड्स समटाइम्स नॉट, बट मेरे को हमेशा मेरे से बड़े लोगों के साथ ही हैंग आउट करने में मजा आता था। और उसमें एक सेल्फिश रीजन भी था, क्योंकि मैं जैसे गली में उनके साथ अगर टाइम स्पेंड कर लूं और वहां पे जो जोक्स मिल जाते थे ना, वो मैं स्कूल में मार के आता था। तो स्टीलिंग लाइक स्टीलिंग, बट उसको मैं अपने हिसाब से बोलता था, इंस्पिरेशन। तो आई थिंक मेरा जो ह्यूमर इवॉल्व हुआ है मोस्टली द काइंड ऑफ ह्यूमर दैट एज यू मेंशन दैट यू सी इन माय स्केचेस आल्सो और इन माय स्टैंड अप बिट इज कमिंग फ्रॉम दैट ग्रास रूट लेवल वेयर यू नो 4 लौंडे खड़े हैं आपस में, और जो डेली लाइफ सिचुएशंस हो रही है उस पे बस या तो ऑब्जर्वेशंस है और या तो उनके ओपिनियंस है, जो फनी ऑर्गेनिकली है, मतलब एज नोबडी इज डूइंग अ सेटअप पंचलाइन। हाँ, वो पंचलाइन है, वो बाद में पता चलता है, राइट? कि वो ऐसा किसी ने भी ऐसा, जैसे एज कॉमिक्स यू नो व्हाट इज अ सेटअप एंड पंचलाइन एंड यू विल डिलीवर इट लाइक दैट, बट वहां पे तो सब कुछ ऐसे हो रहा है कि हर तीसरी चौथी लाइन पंचलाइन बन रही है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टिल द टाइम आई डिड नॉट नो दिस जार्गन। तो वो एक जर्नी में, एक वो फेज में ऐसा होता है कि जैसे मैं बोला स्कूल में तो मुझे पता भी नहीं था कि सेंस ऑफ ह्यूमर है, पर जब पता चला फिर और पता चला कि अच्छा इससे मेरे इमोशंस, मुझे वैलिडेशन मिल रहा है, तो मैं शायद उसको ज्यादा करने लग गया। तो व्हेन यू डू इट लाइक इंटेंशनली, then you see that magic is not working. Then you are like, अच्छा नहीं, अपन, once you are self-aware about that art, then you are not able to deliver. Yeah, then you're not able to deliver. Then when I was in Mumbai initially for my CA articleship, I just went to Canvas Laugh Club to watch a comedy show, because नागपुर में रह के कि ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी शो कहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो एंटरटेनमेंट बहुत लिमिटेड था, राइट? कि ज्यादा से ज्यादा तुमने मूवी देख ली या प्लेज, बिकॉज माई डैड, माई फैमिली वॉज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग अ लॉट ऑफ कल्चरल इवेंट्स विद इन योर कम्युनिटी। तो थोड़ा वो एक और स्टेप आगे था कि अच्छा मूवीज है और प्लेज है, आप ये देख सकते हो। सिंगिंग में मुझे कभी इतना ज्यादा इंक्लिनेशन रहा नहीं कि मैं जाके कोई एक लाइव परफॉर्मेंस देखूं, वो मुझे हेडफोन्स लगा के ही मजा आता है मेरे जोन में। तो ये 2 चीजें पता थी, बट स्टैंड अप कॉमेडी ऐसे, लाइक आवर रेफरेंस टू स्टैंड अप कॉमेडी इज व्हाट? द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, लाइक सुनील पाल, मतलब अभी नाम लेना तो राजू श्रीवास्तव, द ओजी गाय, एंड उसके पहले अगेन जॉनी लीवर के कैसेट्स वाला मामला भी हुआ है लाइफ में, वो भी ऑर्गेनिकली हुआ है, बट वो इतना नहीं हुआ है कि वंस इन अ वाइल कहीं ना कहीं किसी और रिलेटिव के घर पे वो कैसेट और वॉकमैन में सुन लिया था, बट आई नेवर हैड दैट कलेक्शन। आई डोंट थिंक यहाँ पे ऐसा कल्चर था ऑफ कैसेट्स एंड लिसनिंग टू दैट काइंड ऑफ, बट नाउ आई नो अ लॉट ऑफ लाइक कॉमिक फ्रेंड्स इन मुंबई हु वर इंट्रोड्यूस्ड टू स्टैंड अप कॉमेडी थ्रू कैसेट एंड इवन लाइव शोज, बिकॉज मुंबई में हो रहे थे ये लाइव शोज, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम विद द इंडियन स्टैंड अप सीन कि हमारे पॉप कल्चर में स्टैंड अप कॉमेडी बराबर डॉक्यूमेंट ही नहीं हुई है पहले कहीं। इफ यू see the 3 biggest events of stand-up comedy or comedy as such, there was Johnny Lever ka face, then there was Great Indian Laughter Challenge, like a fucking amazing hilarious show, और उसके बाद AIB रोस्ट जब हुआ था, या कपिल शर्मा बोल सकते हो, कॉमेडी सर्कस जो बीच में थोड़ा सा था, बट उसके अलावा कॉमेडी तो बहुत हो ही रही थी ना यार। लाइक आई रिमेम्बर गोइंग टू हास्य कवि सम्मेलन विद माय डैड इधर गांधी बाग में, वेयर लाइक व्हाट दे डिड वाज स्टैंड अप ओनली। गुजराती में भी देयर इज दिस, इट्स अ शो एंड इट्स कॉल्ड डायरो, इट्स अ गुजराती word wherein the entire show is, and they sit and do it, and the comedian has a harmonium, like he does musical comedy also, and they weave an entire narrative sometimes, or sometimes like मतलब एक टाइप का स्पेशल ही होता है उनका, और उसमें बट इमोशनल एंगल भी होते हैं, मतलब थोड़ा रुलाते भी है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो वो भी स्टैंड अप कॉमेडी ही थी ना वे, बट तब ये सब चीजों का ना सेंस नहीं था कि ये एज अ करियर ऑप्शन, तो it was not even the last thing on the list. But when I went to Canvas Laugh Club to watch a show is when I got to know about open mics first. कि अच्छा open mic में you can also go and do it, right? And I have always been on stage. तो मेरे को stage fright नहीं रहा कभी कि करूँ कि नहीं करूँ नहीं था, बस कब करूँ वाला पार्ट था। तो उसके पहले दिन I went to see an open mic also कि before I go on stage let me see कि what is happening, लोग आके क्या कर रहे हैं, how to go about it, कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे, all these things. Then I did first open mic there.
my office friends were there, my other friends from Mumbai, hostel friends had come. I still don't know till date, I don't know how it went. मुझे लगा था मैंने kill किया, but अभी मेरे को It was a friendly crowd. It was a friendly crowd, yeah. But second, third open mic onwards, I felt that okay, this is something that I can keep on doing and get better at it, because there were people around who I saw getting better open mic after open mic and all of it. So you didn't bomb in that era? I did of course. Achha. Bombing तो हो ही रहा था, but you were too happy to be happy to do it, and ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बॉम्ब हो रहा है, क्योंकि वो टाइम पे ना स्टैंड अप भी वहां पे भी बहुत नया था. लाइक फॉर पीपल टू नो कि अच्छा ये बॉम्ब हो गया, वो भी नहीं था for a phase. But again, at that time also, I did not know that I would pursue it as a career, because I was still doing my CA final. But then when I came back to Nagpur, वो सब करने के बाद, तब यहाँ पे फिर then I started feeling a void. Then you realized you were the best comedian in Nagpur. Yeah, that happened when I put up a show. Yeah. उसके बाद हुआ. But जो मैं वहाँ से, so CA exam you can give from anywhere. You are not supposed to like. I was in Mumbai for my articleship, which is like after your CA final, on-site training type जो होती है articleship. उसके लिए मैं मुंबई गया था. That I was also very clear. I don't want to do it from Nagpur. Exam के 6 महीने पहले मैं आ गया था यहाँ पे कि I'll prepare here and give the exams. But I don't know what happened. My father still questions that till date, even though he is very happy now with what I do. कि I don't know ऐसा क्या हुआ. I didn't feel like कि मैं पढ़ाई करूँ और एग्जाम क्लियर करूँ. तो कुछ तो void था. क्या void था मुझे नहीं पता. Then I realized that. But you were not clear कि अभी this is comedy that needs to come out. Exactly. At that time I didn't know. You just realized that you're not fitting in this. Yeah. कि वो ऐसा इन जनरल वो ऐसा हो जाता ना कि यार मन नहीं लग रहा ये चीज करने में, जिसके लिए मैं अभी तक इतना एक्साइटेड था कि मैं सीए क्लियर कर लेता हूँ, तो वो नहीं, वो स्विच ऑफ ही हो गया फॉर सम रीजन. एंड योर पेरेंट्स टुक देयर टाइम टू कम टू टर्म्स विद योर चॉइसेस. या दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू. सो व्हेन दे वर अपोज्ड टू इट, या वाज देयर अ पॉइंट वेयर यू वर लाइक ठीक है मैं इनकी सुन लेता हूँ? तो हाँ, वो सुनने में तो फिर मैंने, क्योंकि मेरे पास वो कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वही किया जो एक एवरेज इंडियन लड़का करता है, डोंग. 3-4 साल पढ़ाई करने का, एग्जाम देने का. Then you had to come out of the closet. Yeah, then I had to come out of the closet, make him sit. तमाशा देख लिया 2-3 बार और वो वाला भी होता है ना, वो एक जोक भी है कि पापा मम्मी को तमाशा दिखाओ तो बागबान दिखा देते हैं. तो there is no winning there. तो पर the problem was कि मैं खुद श्योर नहीं था. मैं and as such I don't regret कुछ भी till now in my life, because I feel कि regret का कोई आउटकम ही नहीं है. Like वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आप क्या ही करोगे रिग्रेट करके. बट आई जस्ट क्वेश्चन माई सेल्फ कि वो टाइम पे मेरे को करेज क्यों नहीं आई ये करने की. और मतलब सूनर इफ एट अगेन दिस इज लाइक दैट हाइंडसाइट में एवरीबॉडी हैज रेट्रोस्पेक्टिवली यू कैन एनालाइज इट, बट आई नो फॉर श्योर कि वो टाइम पे इफ आई हैड थोड़ा सा मोर सपोर्ट और मोर लाइक इफ नॉट सपोर्ट एटलीस्ट नॉट व्हाट डू यू कॉल्ड एग्जाम्पल्स अगेंस्ट नहीं होते अगर मेरे घर वाले वो टाइम पे, तो आई फील कि मैंने शायद अभी तक थोड़ा ज्यादा उखाड़ा होता स्टैंड अप में, इज व्हाट आई फील. एंड बाय ज्यादा उखाड़ा होता आई फील कि ज्यादा मटेरियल होता मेरे पास. मैं पहले बाय वर्च्यू ऑफ द नंबर ऑफ years, just by the number of years, because I see a lot of comics who were with me during those open mic days. लाइक 4 मिनट उनके पास है, 4 मिनट मेरे पास है, मोर और लेस हम सिमिलर ही कर रहे हैं, क्योंकि देखो स्टैंड अप में तो द ओनली फीडबैक इज कि ऑडियंस हंस रही कि नहीं हंस रही, यू नो इमीडिएटली. हाँ, तो मेरे सेट पे भी हंस रहे थे, उनके सेट पे भी हंस रहे थे, राइट. And now they have specials, now they are established comics and ये और वो, तो कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, but I don't have any complaints, I don't have any regrets, as I told you कि वो तो वो जर्नी है. वो at that time, अब वो मेरे में नहीं था courage वो चीज पिकअप करने का, तो नहीं था. Also I think it was your environment. Mostly it was my environment. You can't blame yourself so much for it. Yeah, I'm not. I have stopped blaming myself, but I was एक वैसा जोन था जब मैं, क्योंकि मैं जब वापस when I finally took that decision, I had that final word with my parents कि मेरे को जाना है, and they were also कि they saw me struggling, right, कि कुछ तो इसको बॉदर कर रहा है, हाँ कुछ तो है, और अगर अब ये नहीं करना तो ठीक है. So
आई एम मेकिंग अ बिट अबाउट दिस इन माय गुजराती स्टैंड अप कि मेरे डैड ने ना मेरे को कभी फोर्स नहीं किया कभी कि तू ये कर या वो कर. जैसे उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि तू डॉक्टर बन, तू सीए बन. बस मेरे को जो करना था ना उसका मना किया बाय एलिमिनेशन कि कभी ऐसा नहीं बोला सीए कर, पर मैं बोला स्टैंड अप करूं नहीं. तो वो नो वाला जो है वो थोड़ा, इसलिए मेरे को टिल डेट एंड आई थिंक आखिरी तक मेरे को मेरी लाइफ में ना अथॉरिटी से बहुत प्रॉब्लम रहने वाली है. यू डोंट लाइक बीइंग टोल्ड. या एंड बिकॉज नाउ आई फील कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो आ ही जाता है ना कि यार लोग भी बोलते हैं एंड देन अगेन व्हेन, और ये सब ऐसे मोमेंट्स पे होता है जब बैठ के खुद के बारे में बात कर रहे हो इन अ पॉडकास्ट और अपने बारे में इंट्रोडक्शन सुन के, और ऐसे कि मुझे ऐसा लगता है कि वो 4-5 साल 8 साल मैं वो जोन में रहा, फिर कुछ नहीं किया, और फिर उसके बाद अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो अब मैं खुद के हिसाब से करूंगा. अब मैं ना किसी का paid the price and now you're like ab to nahi is what I feel. Makes sense, to be very honest. Yeah. So when you were getting inspired, when like you said with your wo jo 4 londe khade and all of that, was one of them Mr. Vishal? Yeah, you've stalked me like ekdam to that T bro. वही है भाई, वो आदमी मेरा वो 25 साल पुराना दोस्त है. मैं अभी 32 साल का हूँ, 25 साल पुरानी दोस्ती है. तो वो ना पूरा वैसा वाला रहा है. वो विपलैश का जो फिलॉसफी है ना, आई थिंक मैं ऐसे ट्रेन हुआ हूँ उसके साथ. ऑब्सेशन बीट्स टैलेंट. एग्जैक्टली. तो बिकॉज ही इवन टुडे इफ आई कॉल हिम राइट नाउ, द फर्स्ट और द सेकेंड सेंटेंस इज गोइंग टू बी अ रोस्ट ऑन मी. कुछ तो नॉनसेंस लाइफ में. कभी सीधी बात वैसे भी 2 लौंडे कॉल करके कौन सी काम की बात कर लिया. I think somehow the way he talks to me and it makes me laugh. So I feel कि वहीं से मेरे को बहुत सारे That's your character. हाँ, वो मिलते हैं कि and he is hilarious. He is one of those जो वो वाला है कि उसको एक भी जार्गन नहीं पता. That's why I envy him. उसको जार्गन नहीं पता, उसको ये उसके लिए कोई करियर नहीं है, इससे उसका कोई एस्पिरेशन नहीं है. तो वो he is very pure like that कि वो फिर सब जो बोल रहा है बिना इनहिबिशन के बोल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से. तो फनी रहता है. एंड आई फील मोस्टली फनी वही है जो एकदम नेचुरल रॉ जो होता है, वो सबसे ज्यादा फनी होता है. Like if you see a lot of comics that we enjoy, we used to enjoy their initial sets a lot more than what we enjoy now. तो वो एक है, वो भी चीज है कॉमेडी में कि आप जितना नहीं ट्राई करोगे उतने आप फनी रहोगे. Now coming back to the process, since we are on the topic of the rawness, the chicken and egg question, which is the punchline comes first or the setup? अब ये सवाल का जवाब तो सदियों से नहीं मिला है, तो मुझे नहीं लगता है हम तो यहाँ but for you, when you are observing that, okay, so you recorded a certain feeling either in your notes or with Romani or whatever, then how are you looking at it when you recall it and you sit down finally? How do you process that? So in the past 2 years I have realized that the process is to hit the stage as often as you can. Weekly लोग और जो दूसरे कॉमिक फ्रेंड्स भी है जिनको मैं देखता हूँ, जो पियर्स है, और वो जितना ज्यादा स्टैंड अप करे उतना ज्यादा स्टैंड अप उनका अच्छा हो रहा है. ठीक है, जो मैं नहीं कर पाता बिकॉज आई लाइक डूइंग स्केचेस, रील्स, आई हैव राइटिंग वर्क, पैरोडी, ये वो सब. बट टिल अ पॉइंट, टू आंसर योर क्वेश्चन, टिल अ पॉइंट मेरे लिए वो पहले पंच लाइन आती थी कि मुझे लगता था ये बहुत फनी लाइन है, अब इसको मैं जोड़ दूं, इसको मैं जोड़ दूं और मैं उल्टा कर दूं. और दूसरा भी होता था कि लाइक इफ जैसे मैंने कॉमिक्सतान जब देखा था तो मैंने खुद के लिए वो 6-7 एपिसोड के 6-7 टास्क रख दिए थे. अपार्ट फ्रॉम ऑल्ट कॉमेडी जो मेरे को अभी और करनी है, कभी ना कभी मैं स्टेज पे, मतलब as they were doing the processes and the activities you were also doing. उनके जो एपिसोड्स थे कि अभी मैं एक टाइम में सिर्फ एनेक्डोटल कॉमेडी करता हूँ, तो जब अब एनेक्डोटल करना है तो आपको फिर वो प्रॉपर स्टोरी ही लिखनी होती है. तो एट दैट टाइम यू कांट राइट द पंच लाइन फर्स्ट. तो फिर देन यू सिट एंड गो बैक कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है. तो मेरा गुड़गांव का बेट आई फील कि वो एनेक्डोटल वहां से आया हुआ है, और तो उस हिसाब से मैंने ट्राई किया हुआ है. बट एंड आर फैक्ट्स द एनिमी ऑफ गुड जोक्स? हाँ, डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली. मतलब इट्स द मोस्ट अनोइंग थिंग कि जब लोग लॉजिक ढूंढने लगते हैं ना जोक्स में, तब, और ऐसा बहुत बार शोज के बीच में भी होता है, लाइक ऑडियंस आके लाइक दे विल शाउट एंड से समथिंग, तो देन यू हैव टू डील विद दैट सिचुएशन कि थैंक यू मैम फॉर फैक्ट चेकिंग और ये और वो कोई लोग नाइस वन ऐसे वैसे ऑडियंस ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हो जैसे मुजरा चल रहा है कि बढ़िया बढ़िया और करो, वो सब अनोइंग था. बट देन इट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब. हाउ कैन यू मेक दैट
happen in your favor कि कोई कुछ बोल भी रहा है तो how do you do it. But I feel कि हाँ logics तो मतलब जब anecdotal की बात कर रहे हैं तो when you're writing those bits or whatever that entire story is coming out of you, so you revisited a certain memory and now you're writing it down. So or are you writing on stage? No, I like to write at least the beats of what is happening in the story. Then I go on stage and I see कि how am I able to tell it to them effectively. तो जब ये वाला process होता है जो again मैं बहुत टाइम से नहीं कर रहा हूँ, गुजराती stand up में हो रहा है क्योंकि I'm building that material right now. But so again almost every other comic will record their set even at open mics, audio recording on कर देता है, right? Okay. And अभी Habitat में तो we have the privilege of getting our streams and all of it. So I think I heard Balraj saying that he's archiving everything. Yeah, he's archiving everything. He was on this episode with Chalchitra Talking. Yes. तो वो एक अच्छा एडवांटेज मिल गया है. अदरवाइज जब मैं बहुत ज्यादा ओपन माइक्स हिट कर रहा था स्टार्टिंग में, जब ये गुड़गांव बेट और मेरी शादी के टाइम वाला और ये सब मैं बना रहा था, तब ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती थी. तो ओपन माइक में तो यू गो एंड देन मैं उनसे कैसे बात कर पा रहा हूँ ये स्टोरी इफेक्टिवली सुनाने के लिए, वो फिर मैं स्टेज पे सुनाता हूँ अपने तरीके से. जब तुम बात करे तो does that mean that you're riffing with them? Riffing with them. So you're open to crowd work. Like in that moment you're doing crowd work. Like riffing with them doesn't necessarily mean कि like it's not a two-sided conversation. It's still a monologue. Okay. It's still a monologue, but depending upon their जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो I am aware of what I am also talking, right? कि मुझे कोई एक चीज बतानी है तो मैं इसमें कितना डिटेल में बता रहा हूँ वो ऑन द स्पॉट भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, बट जब बाद में जाकर रिकॉर्डिंग सुनते हो तब पता चलता है कि ये वाले जोक के लिए ये पंच लाइन तक आने तक मेरे को ये डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है. मैंने फर्स्ट सेंटेंस बोला, फोर्थ सेंटेंस बोला, सेवेंथ बोला, फिर पंच लाइन बोल देता हूँ, क्योंकि पंच लाइन के लिए ये तीन चीजें ही इनफ है. बीच में जो 2, 3, 5, 6 बोला है उसकी जरूरत ही नहीं. फिल्टरिंग आउट व्हाटएवर इज अननेसेसरी. तो बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड फॉर योर पंच लाइन. तो again, all of these things I've learned through interviews, through reading comic books, doing it. कि the tighter your material, the better it is, right? Brevity is the soul of exactly. This is something that I've gathered, like a feeling that I've had after learning about you. You're into trivia, you're into facts. I love it. So जब मैं मुंबई वापस गया 2019 में, तो I had applied at Pocket Aces, so Pocket Aces has Filter Copy का parent company है. Okay. Most known as Filter Copy, Dice Media. And then when I had applied there, I had applied for Loco, which is a gaming app. So now it's a separate company altogether. So Loco was a quizzing app where you could play quizzes. And रोज रात को एक लाइव क्विज होती थी, एक होस्ट आता था. I remember this. Yeah, I remember this. So I've worked there. बीच में वो I think there was a period where everybody was doing that. The people were like waiting कि वो everybody used to come. So they used to play for a prize money. So in the end जो भी winners थे उनमें prize money split होता था. Then we had special shows and all of it. Okay. तो again a lot of people had questioned my decision at that time कि तू Pocket Aces join कर रहा है तो तू Filter Copy क्यों नहीं join कर रहा है? But for some reason I didn't want to do that. I wanted to do this because my aim was to pursue stand-up comedy, which I could do by the night. कि मैं दिन को ऑफिस में और रात को मैं stand-up. You were not exploring your comedic writing that point of time. Yeah, at that point I was not. Like one of the reasons to join Loco was because I love trivia and with like watching movies also or whatever shows, whatever you're watching. मतलब 2 घंटा 3 घंटा पिक्चर देखता हूँ, बट फिर 6 घंटा उसका गूगल चालू IMDb और ये goof सूफ्स ये for the longest time because and I think this has helped me the most to do what I am doing now engaging with the pop culture and also understanding कि creative process इतना democratic है कि मैं बहुत बड़ा example ले रहा हूँ, पर अगर Interstellar भी बनी है तो उसमें भी जो बेसिक्स है अगर ब्रॉडली बोलो तो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, प्री प्रोडक्शन में पहले स्टोरी आ रही है, स्क्रिप्टिंग आ रही है, प्रोडक्शन में कास्टिंग हो रही है. सो व्हाट एवर ऑल दोस 24 क्राफ्ट्स जो भी हो रहे हैं, द मोर यू रीड अबाउट इट द मोर यू रियलाइज कि सब लोग वो एक एक स्टेप ही कर रहे हैं. क्योंकि उसके पहले था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम तो मतलब आप मूवीज और ये सब के एनिग्मा में ही रहते हो. आपको लगता है you're not seeing the cut. You're not seeing the cut. You don't know कि you can also do it. But आप उसको अगर छोटे स्केल पे भी कर लेते हो और वो अचीव हो जाता है
और आपको जब ऑडियंस से वैसा रिस्पॉन्स मिलता है जैसा आप कोई चीज को दे रहे हो, तो देन लाइक उसके बाद फिर वो मतलब इट्स लाइक एन अनियन ना, उसकी लेयर्स खुल जाता है। तो उसमें मैं कहाँ कितना डीप तक जा सकता हूँ हैज ऑलवेज एक्साइटेड मी, हैज ऑलवेज लाइक वो इंक्लिनेशन आ ही जाता है कि कोई भी चीज का जो सरफेस लेवल पे वो तो दिख ही रहा है, बट ये यहाँ तक कैसे पहुंचा है अगर मैं वो जान लूँ तो शायद मैं भी वो कर पाऊंगा। सो गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द प्रोसेस। अभी थोड़ा सा स्टैंड अप कॉमेडी का एग्जांपल लेके, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन स्टेज जस्ट बिफोर यू नो द अनाउंसर कम्स इन और योर ओपनिंग एक्ट और व्हाटएवर इट इज, यू गो ऑन स्टेज, इज देयर एनी प्री स्टेज रिचुअल और समथिंग दैट यू डू, और इज देयर अ सर्टेन हेड स्पेस दैट यू लाइक टू गेट इनटू? नहीं यार, अभी ये वाले फेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव द एबिलिटी टू जस्ट वॉक आउट? बिकॉज आई एम लर्निंग टू डू दैट। वन ऑफ माई एम्स इज कि अगर हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं और बाजू के रूम में शो होने वाला है 15 मिनट बाद, so I should go there and be able to do the show as it is what I am aiming for, and that's why I have पहले बहुत थे ऐसे रिचुअल्स, एंड देन आई रियलाइज कि ये अननेसेसरी है अप टू अ पॉइंट। कि देखो रोज आप सेम फील नहीं, इट्स लाइक दैट ना कि ट्राइंग टू रिलैक्स इज अ पैराडॉक्स, कि हाउ कैन यू ट्राई टू काम योरसेल्फ, आपका जो स्टेट आइदर आर और नॉट। तो शोज में अब वो कभी एज सच एक नर्वसनेस तो रहती है कि आज की ऑडियंस क्या है, आप कितनी बार भी कर लो, 50 लोगों के लिए करो, 500 लोगों के लिए करो, कुछ भी लाइक वो तो रहती है। व्हाट आई हैव लर्न लाइक माय स्कूल ऑफ थॉट फॉर स्टैंड अप इज कि मेरे को एक रूम में भेजा है और यहाँ इतने स्ट्रेंजर्स को या इतने लोगों को हंसाना है। मैं प्री शो कितना भी रिचुअल कर लूं, उन सब के स्टेट ऑफ माइंड मेरे को नहीं पता। वो एनर्जी तो जब मैं स्टेज पे जाऊंगा तभी पता चलेगी, राइट? और क्राफ्ट तो वही सीखना है ना कि अगर रूम तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम उसको खुद के साथ कैसे ले सकते हो, पुल इट। या रूम ऑलरेडी हाई में है तो तुम खुद को कैसे कंट्रोल करोगे कि यू स्टिल हैव टू डू योर जॉब, यू राइड द वेव। यू कांट बी लेथार्जिक एट दिस पॉइंट कि अरे सबको मजा ही आ रहा है तो ब्रिंग द एनर्जी डाउन विद योर हैंड। तो वो हम लोग अभी जब ये गुजरात शो टूर कर रहे थे, व्हेन वी वेंट टू द यूके आल्सो, सो नाउ आई ट्राई टू बी इन माय मोस्ट नेचुरल फॉर्म, क्योंकि इसके पहले एंड सो आई हैड OCP, like, and this is my therapist who told me कि इसको OCD मत बुलाओ, obsessive, you have written that. हाँ, तो obsessive, कम भाई ये पेज मेरे को देना तो जरा बाद में। तो वो मुझे थेरेपिस्ट ने समझाया कि इसको OCD बुलाने की जरूरत नहीं है, डिसऑर्डर बहुत ज्यादा, जैसे आजकल सब लोग आई थिंक जेंजीज को तो बहुत सबको लगता है उनको ADHD है, बहुतों को है भी because of social media mainly. So disorder is when you're not able to function your daily tasks. कि अगर ये चीज यहाँ नहीं रखी हुई है तो मैं you'll go crazy. So I used to go crazy, but then you still go on with your work, right? So it's not an impediment. It's not an impediment. But if you start saying that you have it, then it negatively affects your brain. तो वो पॉइंट मुझे बहुत सही लगा था, क्योंकि उसके पहले तक मैं I have learned it the hard way कि अगर शो के पहले मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला गाना सुन लेता हूँ तो ना मेरा दिमाग उसी में चलते रहता है। और जैसे मेरे को I love नेजी, जूना वाला, अभी वाला बिग बॉस वाला तो बिल्कुल iPad वाला नेजी, गली बॉय तक का नेजी। तो उसके कुछ गाने में बहुत ज्यादा सुनता हूँ क्योंकि मेरे को उसमें बहुत ज्यादा ट्रूथ मिलता है और पम्प्ड अप भी होता है, वो आदमी भी बहुत पसंद है। तो मैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो सुनता था जस्ट बिफोर आई एम गोइंग टू फॉर द शो ऑन द स्टेज। बट मेरे को ना बीच में ऐसा रियलाइज हुआ कि यार अभी मजा नहीं आ रहा है यार इसका गाना सुनने में, क्योंकि नहीं आएगा ना वो टाइम पे हर बार कंटिन्यू। या एग्जैक्टली। तो आई लाइक टू गो विद द फ्लो। बेसिक रिचुअल्स तो जो होते हैं कि एक बार तुम बस खुद को एक बार मिरर में देख लो कि कहीं से कुछ ऑड अजीब तो नहीं दिख रहा है। जैसे शाहरुख खान के पॉडकास्ट में वो बोलते हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को पूछा था कि व्हाट डू डू बिफोर गोइंग ऑन द जिप। हाँ, तो यू चेक योर जिप। तो बस वो 2-3 बेसिक जो चीजें होते हैं, आप कहीं भी जाने के पहले बाल थोड़े ठीक कर लो, गला साफ कर लो, और दैट हैज बिकम नाउ योर रिचुअल। दैट इज बेयर मिनिमम। ओके, वो ही है। बाकी टूरिंग में तो बिकॉज विराज है, अर्जुन है, आरीज है, हम लोग जो साथ में गुजराती शो कर रहे हैं, तो वो हमारे जो रिचुअल है वो भी बहुत ऐसे ऑर्गेनिक से ही है कि जो हमारी इंटरनल बकचोदी होती रहती है वो हम बस शो के पहले या आने जाने के पहले कर ही लेते हैं कि एक दूसरे को, मतलब जानबूझ के करते हैं कि थोड़ी जानबूझ के करते हैं बकचोदी करने के लिए। और ऐसा सब कि अर्जुन स्टेज पे जाने वाला है, उसके पहले उसको जानबूझ के 4-5 चीजें बोल दो कि थोड़ा सा वो प्लेफुलनेस क्रिएट करने। एग्जैक्टली। क्योंकि हम फिर ना इम्प्रोव भी करते बाद में, तो इम्प्रोव करने के पहले तो
बहुत सारे इम्प्रोव ट्रूप्स के रिचुअल्स होते ही है एंड दैट इज मतलब वो रिचुअल नहीं होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस वेर इन यू हैव टू बी इन सिंक. जैसे वार्म अप एक्टिविटीज होती है वो करनी ही होती है आपको साथ में, मतलब बॉडी एक्सरसाइजेस, वोकल आप सबकी एनर्जी सिंक में की है कि नहीं, उसके लिए गेम्स भी है, उसके लिए फिजिकल चीजें भी है, जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के मिररिंग एग्जैक्टली वैसी सब बहुत सारी चीजें, तो वो भी हम लोग करते हैं. बट नाउ बिकॉज आई थिंक वी हैव डन some like enough shows to build that rapport. अब वो सब दूसरी चीजें करना थोड़ा ढोंग लगता है कि मतलब अब इसकी जरूरत नहीं है तो क्यों करना है भाई. अपन फ्लो में रहते हैं ना. हाँ, अपन कंफर्टेबल रहते हैं, फ्लो में रहते हैं. हम लोग अभी एक और ऐसी चीज करते हैं कि ऐसा सामने वाले को बोल देते हैं कि मैं एक लाइन बोलने वाला हूँ और which will throw you off. Like that will happen. तो वो एक हेल्दी कंपटीशन ही है कि or getting someone to break या किसी का कुछ पर्सनल चीज ऐसा कोड करके बोल दो कि उसका थोड़ा. एंड वी डू अ वेरी PG-13 शो, राइट, बट देन देयर आर सर्टेन मीम रेफरेंसेस दैट वी शेयर दैट आर क्वाइट डार्क और व्हाटएवर. हाँ, लाइक on the edge. तो नहीं, ओवर एंड अबव द एज वाले. तो उसका कुछ कभी बोल देते हैं. तो और उसमें फिर उल्टा ऐसा भी होता है कि शो के बाद मुझे वो बोल रहा है, मैं उसको बोला है कि ये बोलने वाला था तू, ये लाइन थी तेरी, चल नेक्स्ट टाइम बेटर ट्राई करना वैसा. तो वो सब you could not break me कि ये तो बेसिक, ये तो वनीला, ये क्या बोल रहा है. Okay, so now that you are finally on stage, how important it is for you to make it into a laugh a minute thing, or how important is it for you to get to the first laugh? भाई बहुत जरूरी. वो तो I think that is like क्या बोलेंगे, first rule of your परफॉर्मेंस कि you have to make them laugh in the first minute. भी बहुत ज्यादा हो गई आजकल तो, क्योंकि it has to be खट मतलब it has to be one joke after the other. Yeah, it has to be. So the first joke and the last joke are the most important jokes. कि you have to close on the highest, and as soon as so this is what the thing with stand up is, right, कि आपको ऐसे लग सकता है कि आप बहुत फनी हो. आपके 4-5 दोस्तों में बैठ के अगर आप जोक सुना रहे हो तो आप हर तीसरी सेंटेंस आपकी पंचलाइन है, बट उसका रीजन ये है कि वो तुम्हें 15-20 साल से जानते हैं. उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट है, पूरा सेटअप है. बट जब एक नई ऑडियंस के पास जा रहे हो तुम, तो उनको तो पता ही नहीं तुम हो कौन. एंड अगेन इतने सारे कॉमिक्स है, इतने सारे परफॉर्मर्स है, लोग रील इतनी देख रही है, कॉमेडी इतना देख रहे कि इट हैज बिकम ऑडियंस इज एजुकेटेड एंड उनका भी थ्रेशोल्ड बढ़ते जा रहा है फनी का, कि इसलिए आपकी ओपनिंग लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज यूजुअली योर स्ट्रैटेजी फॉर द ओपनिंग लाइन? Is it like a self-referential? Like the current phase right now, I go with कि मैं नागपुर से हूँ. Like first, it's not a joke on your appearance. No, it's not on my appearance, but it is somewhere on where I come from, and my opening jokes are these only, which is very closer to the truth. कि I am very happy to be here, come here and perform and do stand up in Mumbai. क्योंकि मैं नागपुर में जब stand up करता था तो मुझे यहाँ के पता चला कि मैं वहाँ stand up नहीं करता था. तो see again, so इतना भी मिल जाए ना अगर सामने वाले से, तो they are also attentive enough कि अच्छा ये आगे भी कुछ बोलेगा, आगे भी कुछ बोलेगा. But the great thing I think about your Nagpur references is that you're not necessarily punching down, because the follow up to that opening is that वो तो लोग सुन के चले जाते थे. Didn't realize that ये offend हो जाएगा या कुछ हो जाएगा. So it's not necessarily a punch down, even if it is. Or are you guilty of punching down? यार मैं as soon as you mentioned punching down ना, मैं पूरा एक सेपरेट जोन में ही चले गया जो मेरे को आजकल नहीं समझता है. Honestly speaking, and I want to understand your opinion on this also. मैं for the longest time मैं इसमें फंसा हुआ था कि punch up और punch down, and of course punch down नहीं करना चाहिए. अगर कोई already, if someone is at a status in life, whatever it is, socio-economic, whatever status, और तुम उसी का मजाक उड़ा रहे हो, मतलब वो फिर वो क्या मजाक है, right? वो तो छिलुट गिरी है नागपुर की भाषा में. You should not laugh at them, you should laugh with them. The target of your joke should always be higher, जिसके ऊपर हंसना चाहिए, ऐसा, like Ambani or whatever. Whatever. But now, like I sometimes laugh the highest at handicap jokes. I don't know whether I should be guilty, but because I know
एंड दिस इज अ ट्रैप जो कॉमिक्स जिसमें फंस जाते हैं. जो आप कोई भी कॉमिक से मिलोगे ना, अगर उसके घर में किसी की डेथ भी हुई है ना, तो मैं कॉमिक से विद इन 1 hour उसकी वो डेथ पे जोक मार सकता हूँ, क्योंकि उसको भी पता है कि यार ये जोक है, राइट? It's also healing in a way, like you're processing that loss. Not necessarily. Okay. मैं बोल रहा हूँ वो ओवरथिंक करने की जरूरत ही नहीं है. हम लोग इसमें इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम वो फिर बहुत ज्यादा सोचने में चले जाते हैं. हाँ, अगर लाइक क्या है लाफ्टर क्या है? योर रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी का फिजिकल रिस्पॉन्स है ना. बहुत लोग को स्ट्रेस से आता है या बहुत लोग को ऑकवर्डनेस से आता है. स्टैंड अप कॉमेडी ऑडियंस तो बहुत सारे तो पीयर प्रेशर में हंसते हैं कि रूम में सब हंस रहे तो हंस दो, घर जाकर लगता है कि अभी इतना फनी नहीं था. व्हाटएवर, इट्स योर रिस्पॉन्स, राइट? अब आपकी बॉडी ने कुछ एक रिस्पॉन्स कर दिया. फॉर एग्जाम्पल कंपेयर इट टू स्नीजिंग. आपने छींका तो आप छींकने के बाद सोचते हो क्या यार मैंने 4:25 पे क्यों छींका, वहां पे वो इसके बारे में बात कर रही थी और मेरा छींकना सही है क्या ये पॉइंट पे? एम आई स्नीजिंग अप और एम आई स्नीजिंग डाउन? तो लाइक इफ यू आर लाफिंग, आप इसको कितना भी ज्यादा डिकोड कर सकते हो और फिर इंटरनेट पे डिबेट हो सकता है कि डार्क जोक्स चल सकते हैं, नहीं चल सकते, ये चीज सही है, ये चीज नहीं है, विच इज वेयर लाइक एंड आई फील मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कॉमिक. आई अग्री, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है. मैं ये मतलब 5 साल पहले ऐसा नहीं सोचता था, बट नाउ आई नो. मैं ऑडियंस से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. एवरीवन कम्स विद अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, दे हैव देयर ओन स्टोरीज. तो आई कांट पुट देम एट दैट स्पॉट. स्पेशली अगर कोई पैसे देख के अपना शो देखने आ रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि भाई मैं तो ऐसे ही जोक करूंगा, तुमको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनो. They are not comedians. They are not comedians and they are also entitled to their opinion. They are entitled to be offended. I agree कि नहीं जम रहा है तुमको तो नहीं. How they respond is different. कि फिर तुमको नहीं हंसी आ रही है तो मत हंसो, कोई बात नहीं, मेरे को बता दो तुमको अच्छा नहीं लगता, जो तुम बता ही देते हो नहीं हंस के. मैं वो वाले पार्ट का तो बिल्कुल फेयर में नहीं हूँ कि इसको मारो, इसके घर जला दो, इसको अगली बार से कॉमेडी मत करने दो. वो सब भी सही नहीं है. बट आई फील कि जब तक वो जो लाइन है ना, आई फील कि वो कॉमिक और ऑडियंस दोनों को मिलके बनानी होती है. एंड यू शुड नो हाउ टू रीड द रूम. यू शुड नो, वो तो सब बेसिक है. बट वो जो लाइन है ना, वो कॉमिक को भी नहीं पता. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको. बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन नहीं आ सकता जिंदगी में कभी, बट मल्टीपल शोज में बंद कमरे में पब्लिक चेयर से गिर के हंसा है, ऐसे शोज देखे हैं मैंने. जो ऑनलाइन नहीं आ सकता वो इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वो एक डिफरेंट एपिसोड हो जाएगा ऑल टुगेदर. बट अगर हम इसकी बात करें कि बिटवीन ऑडियंस एंड द कॉमिक कि किस चीज के बारे में जोक नहीं कर सकते, वो ऑनेस्टली कॉमिक को भी नहीं पता. और ये भी एक चीज है कि वो लाइन पुश तो करती रहनी पड़ेगी. Exactly. Do you think that it's your duty to push that? I don't think it's my duty अभी. I am not, मतलब मुझे for me, like overall, what I love the most is entertaining people. अब और उनको entertain करना है तो मतलब that's the biggest goal. For me, that's the biggest goal. मैं of course I want to be as true to my art as I can be, to my craft as I can be. But मैं उसको अभी ऐसे जैसे for example political jokes में नहीं करता बिल्कुल भी. मेरे को बेसिक्स ही पता है. मेरे खुद की कंट्री के पॉलिटिक्स का भी मुझे नहीं पता. सब अब नहीं पता, मैं क्या करूं. मैं ट्राई करता हूं टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एज मच एज आई कैन, लाइक टेक केयर ऑफ माई ड्यूटीज एंड बी अवेयर. मैं ऐसा वो वाला भी नहीं कि मैं पॉलिटिकल हूँ, जिसको जो करना है वो भी. दूसरा, मैं अगर आपस में हम जैसे दोस्तों में भी बैठा हो तो मेरा ग्रुप, मेरा सोशल सर्कल ऐसा नहीं है जो पॉलिटिकली एक्टिव है. 1-2 जोक यहाँ वहां हो गए जो मीम पे ही चल रहे हैं, उसमें भी कोई खुद का ओरिजिनल ओपिनियन नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस पुटिंग कॉमेडियंस ऑन पेडेस्टियल इज वेरी रॉन्ग कि तुम सॉल्व करो. भाई तुम पहले पॉलिटिशियंस को तो पेडेस्टियल पे रखो जिनका कोर काम ये है. वो नील ब्रेनन का है ना कि whose idea was it to ask the clowns how we should do it. exactly. तो अगर तुमको सवाल पूछना है तो पहले पॉलिटिशियन से तो पूछो जो तुम्हारा कोर है, फिर कॉमेडियन पे आओ ना. और वो भी अगर कॉमेडियन बोल रहा है कि उसके पॉलिटिकल ओपिनियंस है या कुछ है, मेरे उतने ही हैं जितने एक एवरेज इंडियन मेल के होंगे. ये पॉइंट, इफ आई एम सपोज टू लर्न एंड रिसर्च मोर अबाउट इट, आई कैन सिट एंड डू इट. बट आई वुड रादर write 10 other jokes ना, make a sketch on world is big, you don't need to go into that zone. मैं पहले अपने घर की पॉलिटिक्स समझ लूं. मैं उसमें थोड़ा समझू कि ये क्या है क्या नहीं. मेरे लिए इट्स बीन 3 years, बट मेरे लिए अभी भी नया है ससुराल और घर और मायका और ये वो सब. पहले मैं वो पॉलिटिक्स समझ लूं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ. लाइक इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अनलेस अ कॉमिक इज लाइक, बिकॉज देयर आर
comedians who do political purely or satire or ये सब. तो what I enjoy doing the most is my observations, like the world from my point of view. You're an observational comic, basically. Mostly, yeah. So now you're on stage, you've gotten to the first laugh. You're probably doing, I mean, this is how I imagine. So this is my imagination. I don't have any, you correct me where I'm wrong. Probably there's a story or a bit that you have from, say, about your marriage. And there's another bit that you're doing about, I don't know, Gurgaon or whatever. Yeah. You have to segue or connect it or, do it in a smooth way, the transition. Is there any craft to that as well, jumping from one bit to the other? So segue is the tool, and I think you find segues mostly on stage rather than like while practicing. Yeah. While you are on stage, I think you find segues. Again, a while ago, I thought that segues are really, really important. Like, you need segues for sure. But I've also seen comics who will like talk about curtains at their home and suddenly there's a hard cut to traffic on road. Right. So, and that doesn't catches the audience off. I don't think so. They don't care about the narrative. They don't. I think it's writers and stand-up comics. So, like when you're writing a special, I think you should, like, special is defined by कि एक overarching narrative है और एक thread है जिसको लेके आप जा रहे हो. But आप, मुझे ऐसा लगता है जब तक आप स्पेशल तक पहुंचते हो तब तक आपकी जो भी ऑडियंस है, छोटी बड़ी इन साइज व्हाटएवर, उनको आपकी बेसिक पर्सनालिटी तो पता ही है. तो अगर मतलब उसमें भी थ्रेड ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है ऐसा मुझे लगता है. Like, और मैंने अभी जैसे गुजराती में भी when I started doing it, like when I start with talking about myself, again, I am from Nagpur and glad to be a part of this show. Then I talk about the struggles in Mumbai and then I go back to कि नागपुर में लाइफ ऐसी नहीं थी, नागपुर में बचपन से मेरे डैड को तो ये सेगवे हो गया. मुझे लगता है इतना ज्यादा उसको सोचने की जरूरत नहीं है. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर जिस दिन स्पेशल भी बनाऊंगा तो सेगवेज बन जाएंगे. उसको इतना कि एकदम स्पेसिफिक बेस्ट सेगवे क्या होगा वो ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं लगती. But this Nagpur premise that I'm from Nagpur, that's your opening line. This won't work in Richmond, right? It does. To my surprise, it did, because there I don't say it matter of factly. There I actually ask them. So that's riffing. So I'm from Nagpur. Have you guys heard of Nagpur? Like that. And I was prepared in a way, not in terms of my lines, but in terms of if I have to draw a parallel between UK and so at that time we were doing 2 shows, one in London and one in Leicester, and Leicester is supposed to be a smaller town where people hate to go because it's not there, whatever. Like in Leicester भी अच्छा ही था, मतलब बहुत बढ़िया था यहाँ के बहुत सारे शहरों से, but वो क्योंकि वो लोग लंदन में थे तो लेस्टर वही करेंगे ना, वैसा ही करेंगे. Then immediately when in my second line I said that Nagpur is the Leicester of Maharashtra, so then people like completely with original उनका कॉन्टेक्स्ट दे दिया. हाँ, उनका कॉन्टेक्स्ट दे दिया. और टू माई सरप्राइज ऑल्सो, लाइक आई हैव लर्न्ड वेयरएवर आई एम गोइंग पीपल नो अबाउट नागपुर. ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं है लोगों को. यू नेवर बीन कॉट ऑफ गार्ड ऐसे. कॉट इतना नहीं कि, एंड लाइक इफ देयर हैव बीन शोज वेयर there are certain people who don't, and these people happen to be mostly the Gen Zs who are mostly, क्योंकि हम वो एज में हम भी ignorant ही थे, जो ऐसे सुना होता है, बट फॉर देम इट इज कूल टू नॉट नो ना कि ब्रो क्या है नागपुर, आई डोंट नो ब्रो. तो देन यू कैन फाइंड वेज टू maybe take a dig at them only. So you're okay with like joking at the audience? हाँ, you like it happens organically कि I don't intend to कि मैं जाके अभी इसको पकड़ के इस पे जोक मारूंगा. बट मैंने भी देखा है जितना मेरा कॉमेडी और मेरे को भी जितने लोगों ने ज्यादा बोला है कि I can do good crowd work, which I also realized because I've understood कि उसमें से बात ही करनी होती है. I'm not necessarily saying that I'll do funny crowd work, but I can talk to people. वो तो bare minimum है ना. Again, there are some comics who don't like to interrupt their flow. Like they will be taken aback अगर suddenly बीच में से किसी ने कुछ बोल दिया. But मेरा personality भी ऐसा है कि I thrive in chaos. So if there is an interruption, you can snap back to the. I can, and I have learned like the easiest thing to do is be completely honest and say it out loud. और उसको फनी वे में बोल सकते हो तो बोल दो. मैंने अभी रिसेंटली कोई शो में जब बहुत ज्यादा हेकलिंग हो रही थी, and I tried trying to pacify them, like core hecklers भी थे, दूसरे लोग भी थे जो होते, मैं जाके सीधा बोल दिया कि भाई मैं बहुत लर्न करके आया हूँ घर से, प्लीज करने दो मेरे को ये, एंड देन आई कैन अगेन डू कि नहीं तो मेरे को वापस नागपुर जाना पड़ेगा. So then they are with me. So again, the basic
learning that we all know that truth is the funniest most of the times. Like honesty, authenticity. Actors को भी वही सिखाते हैं, find your truth on stage. So and the people, all the personalities that I have also loved and liked and have been inspired from, aspire to become, I have found this common thing कि यार ये authentic है, ये true है, brutally honest. Brutally honest भी बहुत लोग है, बहुत लोग नहीं है. वो सब like बहुत बार अब वो भी पता है because ये फील्ड में काम कर करके ये भी पता चल जाता है कि साला कितना staged भी है ये सब चीजें. तो कोई चीज पे as such भरोसा तो कर ही नहीं सकता हूँ मैं पर्सनली आजकल. बट स्टेज पे मैंने ये देखा है कि अगर आप बॉम्ब भी हो रहे हो और अगर आप एक्सेप्ट कर लो सिचुएशन, दिस इज नॉट गोइंग गुड, तो यू विल गेट सम लाफ्टर, पिटी लाफ्टर भी मिल जाएगा. फिर वो भी एड्रेस कर दो कि पिटी लाफ्टर नहीं चाहिए भाई, अगला कॉमिक बहुत फनी है, मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया टाइप्स. उतना सच तो आई थिंक रहना भी चाहिए. फिर आई वाज वाचिंग वो BBA वाला that it came out like a snap when that girl was slurring or she was saying something. So how quickly can you process that? So I have been told कि, और if you want to hear it from the horse's mouth, तो मेरा वो strong suit है honestly. Like I don't want to sound arrogant कि you're witty plus मतलब as in quick comedy जो टाइम पे वो करना है, वो अवेयरनेस है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और उसने जस्ट 30 सेकंड पहले क्या बोला था भाई. अब वो है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, तो मैं उस पर भी ज्यादा ओवरथिंक नहीं करता क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा कुछ लगता है कि ये मेरी बहुत सही चीज है, तो होता है ना आप उसको बहुत मतलब ऐसे गले से लगा के रख लेते हो और फिर वो चली जाती है. इट्स लाइक दैट एग्जाम्पल ना कि अगर मुट्ठी भर के आप रेती भरोगे दिल चाहता है तो वो छूट ही जाएगी. And I believe in all these things. For the longest time it was theoretical, but now that I'm getting to do a lot of these things, वो जब practical आते, and वो again मैं बोल रहा हूँ ना कि वो जो आप और मैं बात कर रहे हैं तब मुझे भी realize हो रहा है, वैसे realize नहीं होता है, वो हो जाता है बस आपके साथ. It is in that flow, it is in that process की. But do you still think that, I mean you're not overthinking it, but do you still think that's your greatest strength, that quick? Yeah, that I've like, क्योंकि the BBA video that also you are mentioning, that was never a planned reel or anything. कोई वो ऐसा सोच के नहीं था कि आज ये वाली रील डालूंगा. Again, Habitat में सब स्ट्रीम हो रहा है and we get that advantage to cut out reels, and ये algorithm जो हमसे मांगता है वो देते रहो उनको. And I say that with intensity क्योंकि keep feeding that dragon, keep feeding that monster कि ले भाई ले. तो वो जब कोई फेज में वो होते जाता है कि मेरे शो मैं जब परफॉर्म कर रहा हूँ and I'm at that state of mind जो ऑर्गेनिक है सब है, तो ऑडियंस इंटरेक्शन मेरा फनी निकल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. वो BBA वाला भी इट्स अ वेरी लॉन्गर दिस थिंग, इन द एडिट यू वुडंट रियलाइज इट, क्योंकि मैंने पहले BBA की बात पहले करी. हाँ, फिर बीच में कुछ और हुआ था, मैं कहीं अपना दूसरा सेट कर रहा था, There is a quick callback. बिट पे आ गया था. हाँ, बिट दूसरा हो रहा था. और फिर उसमें भी वापस इन्होंने कुछ बोला बीच में, एंड देन द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड कि कॉल बैक कर लेते. हाँ, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम BBA कर रहे हो, ये वही है. और इसीलिए वही है ना कि सो व्हाट यू सॉ ऑन द रील, थैंकफुली इट गॉट ट्रांसलेटेड. बहुत सारी बार लाइव शो का ट्रांसलेट नहीं हो पाता, बट वो रूम में तो वो जो किल होता है ना वो, और मुझे ऐसा स्टैंड अप करने की ज्यादा मजा आती है. इसलिए शायद मेरे पास शॉर्ट मटेरियल इनफ नहीं है कि मैं YouTube वीडियो डाल दो, ये कर दो, क्योंकि मैं ज्यादातर अब ऐसा ही सोच रहा हूँ कि अगले 15 मिनट में वो रूम में जाके अगर परफॉर्म करना है तो मैं फनी करके आ जाऊँ. तो वो स्टेट ऑफ माइंड में ही रहता हूँ मैं मोस्टली. तो बहुत सारे मेरे ऐसे हैबिटेट के स्पॉट्स हुए जिसमें ये लाइक वो बहुत सही गया हुआ है कि अगर वो देख के फॉलोअर्स मिलते ना तो मजा ही आ जाता लाइफ में. अगर वो तो एकदम प्योर टैलेंट है. हाँ, वो कोर. What I have learned is stand up is that only कि आप वो मोमेंट पे वो that room is the craft. Yeah. वो रिकॉर्डिंग में भी ट्रांसलेट नहीं हो पाए, बहुत बार नहीं होता, क्योंकि इसलिए बहुत सारे कॉमिक्स भी अपना जो टेस्टेड मटेरियल होता है वो भी उनको फर्स्ट रिकॉर्डिंग में मिलता ही नहीं है. आई नो कॉमिक्स हु हैव रिकॉर्डेड देयर मटेरियल मल्टीपल टाइम्स, आइदर दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट या ट्रांसलेट ही नहीं हो रहा है. तो वो एक रात फिर आती है तो वो रात आती है, वैसा है. अच्छा, फिर उसके बाद एडिट रूम में बैठ जाओ. हाँ, फिर तो वो सब करना ही है. तो ये वाली चीज जो ऑन द स्पॉट वाली है ना, वो मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे ट्रेनिंग ग्राउंड क्वेटा कॉलोनी वर्धमान नगर रहा हुआ है ना, क्योंकि और ये इनहेरिट क्राफ्ट है जो अब लाइफ में काम आ रहा है, क्योंकि वहां ये चीज ना सर्वाइवल पे आ गई थी कि अगर आप 4 लोगों के साथ खड़े हो, 4 लौंडे 5 लौंडे खड़े हैं, यू हैव टू बी फनी. तो हाँ, मुजोरी वाज
अ नीड कि इसके अलावा तो भाई सर्वाइव अगर करना है तो या तो फिर वो जंगल वाला रूल है ना कि either you get bullied or become shy or you get thrown out. Okay, so now let's talk about your little bit about your comedic writing and your collaboration efforts. I think we'll start with the biggest one, which was the recent the Zee Cine Awards. Yeah, you spent 3 weeks crafting in the writer's room. In the writer's room. And 3 to 4 weeks. And there was somebody else who was the head writer, I suppose. Yeah. So what is the environment in a comedy room, in a writer's room? What is the process there? How is it to co-write something? And also another question which I'll ask later, which is how is it to write for another character? So for Zee Cine Awards की अगर बात करें तो it came out of nowhere. जिस दिन से मैंने वो प्रोजेक्ट पे काम करना चालू किया उसके एक दिन पहले तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं कल से ये करने वाला हूँ. So I got a call from Pankaj Bhai, who's the head writer. He had seen the गुटका रील, गुटका है गुटका वाला, he had seen, and initially they wanted a writer to write a parody. So he had seen that work and he was like ये parody तो लिख ही सकता है. तो स्टार्टिंग में तो if you watch that show Zee Cine Awards, beginning में स्टार्टिंग में आयुष्मान खुराना ना अपार शक्ति खुराना have done a reel on the song मैं निकला गड्डी लेके. तो initially he had called me for that only कि ये parody है, ये लिखनी है, क्या प्रोजेक्ट है, इसका नाम वाम भी जल्दी बताते नहीं है बिकॉज जब तक चीजें फाइनलाइज नहीं हुई they also have NDAs and a lot of other things going on. तो नेक्स्ट डे इमीडिएट लाइक एंड उसी दिन रात को ही हैड गिवन मी एन असाइनमेंट, ये लिख के भेजो, ठीक है. तो वाज इट लाइक एन ऑडिशन दैट ही वाज काइंड ऑफ, इट्स लाइक वो असाइनमेंट टेस्ट राइटिंग सैंपल राइटिंग जो होती है कि लिख सकते हो कि नहीं, वो तो देखते ही है कोई भी. लाइक आज की डेट में अगर मैं भी किसी को साथ में लूं प्रोजेक्ट के लिए तो यू विल सी कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है सामने वाले से. एंड थैंकफुली उसके जस्ट एक दिन पहले मैंने मेरे सारे दूसरे बैकलॉग और ये सब निपटा दिया था. सो आई वाज फ्री कि अदरवाइज देन बिकॉज व्हेन आई एम राइटिंग, when I'm doing brand work with Viraj or if I've taken up any other writing project, like a part of process वही वाला रहता है कि कल डेडलाइन है तो आज रात को लिख लेंगे टाइप. तो तब तक मुझे वो like I am working on that project mentally like you're procrastinating till the time कि अब डॉक्यूमेंट पे डाल के आगे बढ़ते हैं. तो थैंकफुली उस दिन मैं फ्री था, मेरे पास कुछ और नहीं था, तो आई वाज एबल टू गिव इट द टाइम एंड अटेंशन इट रिक्वायर्ड. आई सेंट इट टू हिम एंड दिस थिंग ही लेटर टोल्ड मी दैट मोर देन द राइटिंग पार्ट he appreciated the promptness, the professionalism कहो या intent कहो, जो भी eagerness और ये हो. तो next day he took me to the meeting कि ये Zee Cine Awards, and I was like okay wow. And as a comic I have heard so many other comedians write award shows. So for me it was like one of एक bucket list वाला item था कि वाओ मैं अभी अवार्ड शो लिखने वाला हूँ. और उस दिन वो वाले रूम में मुझे पता चला कि शाहरुख खान भी ये शो में है. तो तब तो भाई ऑनेस्टली मेरे तो चिथड़े उड़ गए थे. मेरे शक्ल पे भी दिख गया था सबको उधर भी, एंड दे वाज थोड़ा स्केप्टिकल कि ये कर पाएगा, हाँ ये फैन बॉय लग रहा है हमको तो कि इससे कैसे होगा क्या नहीं. बट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू पंकज भाई बिकॉज ही वाज अ प्रॉपर मेंटर हु हेल्ड माय हैंड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. क्योंकि उसके पहले ना आई वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड वेयर आई वाज जस्ट वर्किंग विद कॉमिक्स और विराज, जो मतलब मैं दोस्ती में ही काम हो रहा था तब घर पे बैठे. उसके पहले कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और ये सब है. बट ऑनेस्टली मेरे लिए फैन बॉइंग थी, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं Zee Cine Awards का पार्ट हूँ इन द राइटिंग रूम. किसी के लिए भी होगा. हाँ, और पर वो मेरी शक्ल पे दिख रहा था मैं वो छुपा नहीं पा रहा था. पता है मैं वो एनिग्मा में ही था बहुत सारी चीजों के कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, विच आई लर्न कि देयर इज अ सर्टेन वे. एंड वही वाली बात है कि समटाइम्स टू मच ऑनेस्टी इज आल्सो इट डजंट वर्क. लाइक तो वो मैं ये वाले प्रोजेक्ट पे सीखा था कि अच्छा सब कुछ बोल नहीं देना होता है क्या, ठीक है नहीं बोलता हूँ ऐसा. वो तो सिर्फ पैरोडी के लिए था. देन देयर वर 2 अदर राइटर्स, उनसे भी मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिला, पुलकित ऋषि एंड अली भाई. ये लोग बहुत पहले से ही लिख रहे हैं फॉर टीवी. दे लाइक द रीजन पंकज भाई वांटेड मी वाज ही वांटेड कि जो रील वर्ल्ड और इंस्टाग्राम वर्ल्ड की जो राइटिंग है और जो जोक्स है या जो अप्रोच है वो आना चाहिए उसका, वो हम इंक्लूड करें इसमें. बाकी वो जो एक्सपीरियंस टीवी राइटर्स है वो तो चाहिए ही होता है. तो मैंने शायद ऐसे पब्लिकली ऐसा ज्यादा डिस्कस नहीं किया, पर मेरे लिए वो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था टू अंडरस्टैंड कि मेरे से चाहिए क्या. क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस जब मैं नहीं भी कर रहा था और जो मैंने AIB, AIC ये सब है और TVF और इनके जो इंटरव्यूज वगैरह देखे नागपुर में रह के, तो उसमें तो ये लोग
अवार्ड राइटिंग को तो बहुत ही ऐसे समझते हैं कि थोड़ा वहां पे वो कोट अनकोट क्लास डिफरेंस आ जाता है कि अरे ये वाले टीवी वाले जोक्स है ये, ठीक है। और मैं वहां जाके जो मैं मेरे जोक्स कर रहा था तो वो लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे कि तू स्मार्ट जोक्स क्यों लिख रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था भाई कि यहाँ वाले चूतिया मेरे को इसको चूतिया समझते हैं, वहां वाले इसको चूतिया समझते हैं, तो मैं करूँ क्या। तो यू आर नॉट फेमिलियर विद द ऑडियंस। आई वाज नॉट फेमिलियर विद द वर्किंग द ऑडियंस, but and again because it is so hectic and for them you are replaceable, you are like कि अगर आज काम नहीं हो रहा है तो कल निकल जाओ, कल कोई और आ जाएगा। वो बहुत ज्यादा हेक्टिक एनवायरनमेंट था। तो सडनली मैं उसके पिछले हफ्ते तक 12 बजे उठ रहा हूँ, कॉफी पीऊंगा, 2-2:30 बजे खाना ना खा के सोचूंगा क्या लिखना है। यहाँ पे तो सुबह 8 बजे पहुंचो, 9 बजे पहुंचो और आपको पता नहीं कि आपको वापस घर कब आना है टाइप्स, बिकॉज वो उसका कोर नेचर काम का वही है। देयर आर सो मेनी मूविंग पीसेस टू ब्रिंग एन अवार्ड शो टुगेदर। तो फिर देन आफ्टर द 4th-5th डे आई वाज लाइक कि नहीं, अब मैं आई हैव टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज happening in my life if I want to reach the finish line of this. And the biggest motivation finish line पे तो वो शाहरुख खान। तो तब तक मैं थोड़ा like मैंने अपने एंड से फिर इंटेंट वाइज पूरा ट्राई किया। एंड दिस आई लर्न ऑन स्टेज ऑल्सो कि जब अगर आपके जोक्स या मटेरियल नहीं चल रहे हैं ना, हो जाता है कभी कभी कॉर्पोरेट शोज में भी ऐसा होता है कि नहीं ही चल रहे, आप कुछ भी ट्राई कर लो, ये ऑडियंस आपकी है ही नहीं। आपके जोक्स बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, जो भी होगा आप किल करते हो, बाजू में बूफे लगाए, बाजू में वो भी रीजन वो भी है, प्लस ये ऑडियंस के लिए आप हो ही नहीं। आप कितना भी बढ़िया कर लो, तो वो मोमेंट पे द थिंग दैट यू डू इज आखिरी दम तक खड़े रहो। लाइक वो वाला होता है ना कि व्हाट इज दैट, किल और डाई टाइप। तो टिल द एंड वो जोर तो आपको कि वो तो आपको करना ही है। तो देन फिर मैंने अवार्ड शो में वो स्ट्रेटेजी लगा दी कि भाई मैं नहा धो के तैयार होके आ जाऊंगा, मेरे को बोलो आप कि ये करना है, ये करना है, 1 ड्राफ्ट निकालो, 2 ड्राफ्ट निकालो, 3 निकालो। So were you asked to write the structure or the dialogues or were you assigned a specific character? All 4 of us were writing for everything. It was not कि there was no, so till the point parody was there, it was me and Pankaj bhai who had written it, पर तब तक वो हो गया। और वो भी जो स्केल पे वो चीजें हो रही है कि मैं पैरोडी लिख के पहले ना 2-3 दिन खुश हो रहा था कि मैंने पैरोडी लिख दी, अब आयुष्मान खुराना ये गाएगा, फिर ये स्टेज पे, और तब तक तो वो लोग 5वें-6वें चीज पे पहुंच गए। तो देयर इज नो टाइम टू लाइक सिट एंड इवन एंजॉय और रिव्यू, कुछ भी नहीं। इमीडिएटली जो नेक्स्ट डे करो वैसा। तो स्ट्रक्चरली तो सब द हेड राइटर एंड द अदर एक्सपीरियंस पर्सन वाज डूइंग इट। वंस दे रियलाइज व्हाट माय कोर स्ट्रेंथ इज, आई वाज असाइन्ड दोस काइंड ऑफ जॉब्स। मतलब जोक राइटिंग हो गई स्पेसिफिकली, या फिर बिकॉज आई वाज द मोस्ट जूनियर पर्सन ऑन द प्रोजेक्ट, कीपिंग होल्ड ऑफ ऑल द ड्राफ्ट्स टुगेदर वाज आल्सो पार्ट ऑफ माय, like it was my responsibility, like a bit of a clerical and administration work, yes. But which I realized कि ये तो होगा ही ना, पहले दिन ही जाके तुम थोड़ी बोलोगे कि मैं तो सिर्फ शाहरुख के लिए लिखूंगा। हाँ, but जब when Sunil Grover came into picture and when we started rehearsing with him and writing with him is when my core comic capabilities. How much before the show was the rehearsal process? I think a week ago. So 7 days you rehearsed with him? Yeah, 7 days throughout. No, we met him 7 days before. Okay. And there are creative directors on the job. Then there are people from the channel. We get to meet them only in slots. कि अभी script पे बैठ रहे, but otherwise they are working on the show with different aspects. Like, there are a lot of things. उनके costumes है, उनका ये, उनका दूसरी क्रिएटिव ट्रायल्स, उनकी डेट्स का है, लाइक देयर आर मीटिंग्स जहां सिर्फ डेट्स और कॉस्ट्यूम्स एंड प्रॉप्स आर आल्सो बेस्ड ऑन व्हाट यू आर राइटिंग। या दैट इज, सो योर वर्क कम्स फर्स्ट। Our work comes first, yes. तो उसमें that is when we got to jam with the man himself, Sunil bhai. He's amazing, and I started enjoying the project more when I got to do this. When rehearsal started is because then you are jamming comic to comic, right? And I saw him like he's raw funny, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पे वो एक्चुअल क्रिएटिव प्रोसेस चालू हुई, उनका नेचुरल रिदम। हाँ, तो जब क्रिएटिव टीम के साथ और सबके साथ ये फाइनल हो गया कि दिस इज व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग, वी आर राइटिंग अ ट्रिब्यूट फॉर SRK ऑन हिज फिल्मोग्राफी, and Sunil Grover will play the female parts of all this. तो अगर देवदास है तो he'll be Paro and Chandramukhi, both he is there. Then basketball में चकदे में is one of the hockey girls and all of it. तो जब ये final हो गया, then we jam with
Sunil sir, and then we also come back to the creative team and we discuss. There's a creative director, उनकी टीम होती है, उनके साथ भी जब हम डिस्कस करते हैं तो there are a lot of things that doesn't work for them. So again we have to change it. Like Sunil Grover's team? No, the Z creative team or the creative channel team or the creative team who's handling this, which is sometimes they are also freelancers. So like in this project, they were not working with Z. Z had hired them to pull this show like a company, separate company to organize everything. So when you're writing for Sunil Grover, or he has a presence, he has a character that is well defined, well developed, how much of your writing is pulling that character to your cadence and rhythm, or how much is it that you are writing to his rhythm and cadence? Again, this I learned on the job कि अवार्ड शो में आपको गैग्स और पंचेस लिखना है. व्हेन दे से पंचेस, लाइक इट हैज टू बी लाइक, मतलब वो वैसा सेटअप पंच लाइन नहीं, इतना टाइम नहीं होता है वो शो को के लिए और उनकी ऑडियंस के लिए. एंड अगेन द क्रिएटिव हेड ऑल्सो एक्सप्लेन इट टू अस कि भाई जी सिनेमा जलंधर में कोई एक आदमी देखने वाला है तो उसके लिए जोक लिखना है तुमको. तो ये जब समझते समझते फिर खुद का भी वो वैसे चेंज करना है कि इनको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, तो उस हिसाब से आपको फनी लाइंस बोलनी है. जैसे मेरे अभी आई हैव टेकन बैकअप लैपटॉप में, वरना मैं दिखाता इसमें द वे सुनील ग्रोवर थिंग्स की वो लोग मोस्टली राइमिंग में सोचते हैं कि दे विल मेक पन्स, वो वाली चीजें करते रहो फटाफट, राइट. तो are these like low hanging fruits in your stand-up world? तो मेरा पर्सपेक्टिव भी पूरा चेंज हो गया इसमें कम्प्लीटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो पॉइंट पे कि अगर ये लो हैंगिंग फ्रूट है तो मैं इजीली क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ. Makes sense. It should come very naturally or very quickly to you. But it did not. So that's what I'm saying ना, in these two separate worlds की contemporary stand-up बोलो versus TV audience, broadly speaking, एक जन को लगता है कि ये लोग जो कर रहे हैं बहुत ईजी है क्या है, दूसरे को लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं. But I get to see both, and this thing happened. We can have a separate conversation about it where कि मेरा वो content creators versus stand-up comedians में भी I have seen both the worlds, so I have perspectives on both. तो ये सब मेरे दिमाग में सब इतनी सब खिचड़ी हो गई, बट इन अ वे इतना प्लेन हो गया कि कोई काम इससे अच्छा या उससे बुरा या उससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बेटर है, ये there's no hierarchy. There's no hierarchy. At the end of the day, audience doesn't care. Viraj Gilani for the longest time has been a content creator. He is now doing stand-up shows. Like if you ask a Gujarati person, who's your favorite stand-up comedian, they'll say Abhishek Upmanyu, Zakir Khan and Viraj Gilani. तो comic world तो का दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या this guy so but he is doing stand up comedy, right? तो जो इतने टाइम से डिफाइन कर रहे हैं कि भाई एक साल जोक्स लिखेंगे, स्पेशल करेंगे, 100 छोटे रूम में करेंगे, फिर बड़े रूम में करेंगे. विराज ने पूरा उल्टा किया, पर किया ना. तो आप वही है कि अब मैंने ये obviously like the naysayers will say कि what is this? This is not acceptable. This is not the way to. बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि ये स्टैंड अप नहीं है, बट वो कौन होते हैं कोई बोलने. But we are finding more and more people entering into the industry like that. Yeah. From reels, from your online presence. तो मतलब वो फिर ऐसा होता है कि जो पिछले 8-10 साल में सीखा है पूरा जला के फेंक दूं, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना. वो but there's another question I wanted to ask was कि when you are say doing a family friendly show like the one that the Gujarati comedy show that you did, or for TV when you are writing, when the comedic crutches of Bhenchod and all these things are taken away, does that make the job more pure or more like difficult for you to write jokes which are like clean? Is clean comedy tough when you are coming from a area जहाँ पे ये सब चलता है? So the tougher part is to control yourself not cussing. The comedy part is not tough because अब जब गुजराती स्टैंड अप की बात करो तो it becomes more closer to my home. I am a गुजराती. मैंने 25-30 साल लाइफ में I have been born brought up in a गुजराती वर्ल्ड. तो जहाँ पे what I am my core life experiences को मैं क्राफ्ट का थोड़ा सा तड़का लगा रहा हूँ तो वो फनी हो गया. तो in a certain way it hits closer to home for me. तो वहां पे डिफिकल्ट पार्ट ओनली बिकम्स कि नॉट कसिंग, कि ये अगर मैं नॉर्मली अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ और अगर मैं गुजराती में बोल रहा हूँ कि बोला मोकल ने लोड़ा, ऐसा अगर बोल रहा हूँ तो बस मुझे लोड़ा नहीं बोलना है, वो मेरे लिए टफ हो जाता है. बट इज इट दैट द टेम्पटेशन टू से टू कस इज डिफिकल्ट? हाँ, बट इज द टेम्पटेशन देयर बिकॉज इट मेक्स थिंग्स फनियर? मतलब देखो, जब आप हिंदी में या एक कॉमेडी क्लब में भी अगर आप कसवर्ड्स यूज कर रहे हो, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कसवर्ड क्यों बहुत ज्यादा चलते थे, लाइक इट बिकेम द Bhenchod became the auto tune of comedy. What I have realized is people were laughing only at the fact कि fuck इसने पब्लिक में Bhenchod shock value, हाँ उस पे चलता था rather than कि
जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी, हाँ ये सब कि वो सब हमारे लिए देखना ही, वो सब हमारे लिए एक्सपीरियंस करना वो समथिंग न्यू, वो समथिंग न्यू। अब तो वैसा वाला हो गया, लाइक देयर इज दिस अनदर डिबेट ना कि अगर गाली रियल वर्ल्ड में है तो स्टेज पे क्यों नहीं हो। और अभी रिसेंटली तो सपन वर्मा के एपिसोड में जावेद अख्तर साहब आए थे, उन्होंने तो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया इस पे कि अगर तुम्हारे खाने में नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, तो तुम वो वाला पर्सपेक्टिव भी बहुत लाइक इट्स एन आई ओपनिंग थिंग, राइट। बट आई एम श्योर बहुत सारे कॉमिक्स ये चीज नहीं मानते, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि अगर आप और मैं मिलके बैठ के अगर हम फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोलते कि बेंचों दरवाजा लगेगा, तो वो एक्ट में आएगा। आई थिंक वो रिलेटेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, वो मोर इम्पोर्टेंट है और वो नेचुरली आ जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉमिक्स यू लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ऑथेंटिसिटी ना। अब पता ही है आपको कि फॉर एग्जांपल गौरव कपूर अपने दोस्तों के साथ बैठा है तो वो गाली गलौज करता ही होगा, है ना, दिल्ली का लड़का है और वो ऐसे ही बात करता है। तो अगर वो स्टेज पे बिल्कुल गाली नहीं बकेगा ना, तो ऑड लगेगा, तो ऐसा लगेगा कि ये क्या है। ये शोज में, गुजराती शोज में, बिकॉज it is being catered to a family audience and we have to keep it clean and family friendly, so to say. The best thing that we learned, and I have started enjoying that part the most, one of our directors told us this वो टाइम पे कि भाई तुम लोग ना लाइन टच करके वापस आ सकते हो, लाइन क्रॉस मत करना। एंड दिस थिंग चेंज्ड माई माइंड कंप्लीटली कि वाओ ये तो बहुत बढ़िया चीज है। और आप ट्राई इमेजिनिंग दिस सिचुएशन फिजिकली ऑल्सो, कि मान लो कि आपके माँ बाप खड़े हुए यहाँ पे, आप खुद को एक बच्चा इमेजिन करो, ठीक है, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली और ये सब खड़ी हुई है, और वो लोग बोल रहे हैं कि बेटा इसके बाहर मत जाना, और आप जाके उसको टच करें, तो दे विल ऑल्सो लाफ, यू विल लाइक इमेजिन दैट सिचुएशन, लाइक दैट मेटाफर इन लाइक रियल लाइफ, लिटरली इमेजिन करो उसको, तो कितना लक्ष्मण रेखा, हाँ, तो कितना फनी है। तो बस शोज पे भी यही हो रहा है। और देखो मेरे को ना क्लीन कॉमेडी समझ में नहीं आती। अगर हम ऐसे एनेक्डोट्स है विराज के सेट में भी, मेरे जोक्स में भी कहीं ना कहीं है ऐसा, जो हम सुसु पॉटी की बात कर रहे हैं, अब वो क्लीन कैसे है फिर? आफ्टर अ पॉइंट इट्स द रूम दैट डिसाइड्स कि इतना चलेगा, इतना नहीं चलेगा। लाइक यू नो व्हेन यू राइट फॉर एनिमेशन, you have written for Jambo, yeah. So when you write for animation, the world is your oyster. Like you can just write anything. You can write spaceships into it. You can write Rick and Morty बना सकते हो उसको. You can go absurd. Yeah. But with the production, when you're shooting something in real life, there are certain production restraints, there are certain budgetary constraints, and so when you're writing for a reel, because reel is this kind of like this middle environment where you have a little bit of filters, a little bit of VFX. Yeah. How do you decide कि ठीक है मुझे ये conversation in 2034 वाली reel में props पहनने हैं, it cannot be a filter. How are you making those decisions कि ये green screen नहीं, ये जाके shoot करते हैं? What are those production solutions or what are the strategies there like? तो वो 2034 वाली reel का तो funny story है वो, which according to me I thought was the funniest reel, but it didn't work. For me, it was the funniest. For you, yeah. So again, I wish I can find more audience like you and like, क्योंकि मेरे को भी वो बनाने में सबसे ज्यादा मजा आया, ठीक है। और वो मेरा कोर ह्यूमर है। मेरे को लगता है कि 2034 में ऐसी बातें होगी कि भाई तूने सुना है उसको शैडो बैन कर दिया भाई, तो वो AI को डेट कर रहा है। हाँ, AI को डेट कर रहा है। तो एंड रोहित वर्गीस जिसके साथ मैंने रील बनाई, वी कोलैब ऑन अंकल रील्स आल्सो, ही इज द वॉइस बिहाइंड, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। और मेरी और उसकी भी बहुत मैच होती है, ह्यूमर लेवल और तो सब मैच होता है। बट वो रील नहीं चली। लाइक मेरे को नागपुर वाले, जो मेरी नागपुर की ऑडियंस है, उन्होंने बोला कि भाई ये क्या कर रहा है, वेयर इज द तरीपोहा टाइप्स। तो वो वाला ही डिबेट है कि वो पैंडर करना है कि नहीं करना है। बट मैं बीच बीच में ऐसी रील्स करते ही रहता हूँ और करते ही रहूंगा, because I still don't want to put myself in a bracket कि मैं नागपुरी कॉमेडियन हूँ और ऐसा हूँ, क्योंकि वो मैं खुद एग्जॉस्ट हो गया हूँ यार वो चीजों से। Which showed in one of the last reels where you were like the other person crosses when you are about to say ये नागपुर है and somebody else is crossing, हाँ, and they are like मैंने सुना है, हो गया like that. Your exhaustion was kind of palpable there. I am glad I have met one person who is understanding what I am trying. I'm so happy. I am here for another hour. बोलो क्या बात करनी है। Fuck man, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो मेरा genuinely वो मैंने ऐसे ही किया है। I've realized when you are catering to a larger audience ना, तब ये सब चीजें नहीं कर पाते, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है ना बहुत, तो कॉमन पॉइंट कम हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा एकदम मैथमेटिकली स्पीकिंग। तो वो जो आप अब वही अगर कर दिया तो बेस्ट है। बड़े से बड़े एग्जांपल में भी अगर मासी मूवी बन रही है तो उसमें लॉजिक नहीं आएगा,
आपको फिर वो सब उसमें आप बोलोगे कुछ कंटिन्यूटी नहीं है, स्क्रीन प्ले नहीं है, ये कहाँ से आ गया, वो मास ऑडियंस केयर नहीं करती, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। वो मैंने रियलाइज करा है अभी, क्योंकि मेरे नागपुर रील्स के कुछ नंबर्स मेरे को भी लाइक इट ब्लोज माय माइंड कि 90,000 लोग शेयर कर रहे हैं इसको, यार ये क्या हो रहा है। तो देन यू कीप ऑन थिंकिंग ना कि ठीक है, तो फिर मैं ये और बनाता हूँ, ये तो एक और बना सकता हूँ, ये तो एक और बना सकता हूँ। But then there will be some exhaustion. There is always. And I think you're very smartly like now pivoted, like I was telling you, pivoted to Pune and Mumbai and all of that with the same characters. Yeah. Like the helpline center guy can be a Pune's helpline center guy. Yeah. But again, those things are, thank you for appreciating it, and I can also like be in a delusion कि I've done it smartly. But वो organically हुआ है bro. वो मतलब करते करते the best part about doing. So why I enjoyed stand-up comedy the most is because it is instant feedback, right? But real content is even more instant. Oh, I thought you would say that there will be a delay. नहीं, delay in terms of वो परसों कोई मेरी रील देख रहा है तो ठीक है, बट फीडबैक मुझे तो तुरंत मिल जा रहा है ना एट ए डिस्टेंस। पुणे में बैठा हुआ कोई आदमी अभी स्टैंड अप के लिए तो मैं एक शो ऑर्गेनाइज करूँ या कुछ स्पॉट लूँ, वो तारीख को जाऊँ, वहां परफॉर्म करूँ, और वो परफॉर्मेंस हो गई, मैं निकला हो गया, मतलब वो मटेरियल उतनी देर बैठा हुआ है, इतनी देर बैठा हुआ है। बट अगर रील तो डाल के रखी है, अभी हम जब कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले रील डाली, तो उस पे फीडबैक आ रहा है। बाय द टाइम दिस एंड्स यू विल आई विल चेक एंड देन आई विल नो मोर। तो वो मुझे जो पुणे तक मैं ऐसे ही पहुंचाऊं, यू ऑलवेज नो कि पुणे में भी नागपुर के बहुत लोग हैं, बट ऐसे डीएम्स आ रहे हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे ये वाला एक और लेयर खुलते जा रहा है। आई लाइक टू थिंक ऑफ इट एज अ गेमिंग। आई लव प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑल्सो, तो मैं अपनी लाइफ में भी वो वाले लगा देता हूँ कि चलो ये लेवल 2 आ गया, ये लेवल 3 है, लेवल, जिसमें अब मेरे पास टूल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, या मेरे लिए बॉस फाइट और डिफिकल्ट होती जा रही है, थिंग्स लाइक दैट। तो अभी इसके लिए कोई और स्ट्रेटेजी लगेगी ये लेवल क्लियर करने के लिए। तो वो फीडबैक रील्स में बहुत इंस्टेंटली मिल रहा है कि जब मैंने हाउ गॉड क्रिएटेड नागपुर बनाया, तुरंत इन द कमेंट्स लाइक ऑन that night I understood कि ये फटने वाला है because of the kind of likes to R ratio, shares to R ratio. You know immediately कि ये कैसा ट्रेंड जाने वाला है, ये ट्रेंड कैसा जाने वाला है। उसमें कमेंट्स में फिर आने लगे कि भाई पुणे बनाओ, भाई इंदौर बनाओ, भाई नासिक बनाओ, भाई ये बनाओ, भाई वो बनाओ, ये सब। And I like the feedback also when you made this one reel कि how people think Nagpuri people are, and you end में you are smoking a BD and somebody wrote कि अरे नहीं वो खर्रा खाएगा, वो बीड़ी नहीं खाएगा, so that kind of creative feedback is also coming. That also comes. But खर्रा and all I avoid honestly. बीड़ी तो मैंने बस ऐसे, वो जो पर्टिकुलर रील आप बोल रहे हो ना, वो मुझे लगता है मेरा सबसे घटिया रील है अभी तक की, नागपुर की अभी तक की सबसे घटिया रील हुआ है, क्योंकि उस पर बहुत सारे कोट अनकोट हेट कमेंट्स भी है, नॉट एग्जैक्टली हेट, बट वो लोगों तक पहुंची ही नहीं वो रील। आई वांटेड टू डू इट इन अ वो सार्कास्टिकली लोगों को बताना था कि जब जैसे मैं अभी कल रात को मैं मेरे दोस्त को बोल रहा हूँ कि भाई बियर पीने जा रहा हूँ, एंड इज लाइक नागपुर में बियर मिलती है क्या, लाइक दैट इज जोक दैट ही मेरा भी एक दोस्त ऐसा बोलता है कि क्या बात कर रहे हैं, नागपुर में उबर है, लाइक दैट। तो माय अटेम्प्ट वाज कि लोग ना नागपुर को गांव समझते हैं, और वो मैं सार्कास्टिकली तुरंत कपड़े बदल के आ गया कि हाँ सरकार मालिक हमको जाने। तो उसमें बिकॉज ऑफ द डायलेक्ट आई यूज, पीपल आर लाइक कि चूतिए यूपी से है क्या, बिहार से है क्या, तो कहीं ना कहीं जो उनके दिमाग के स्टीरियोटाइप्स है ना वो बाहर आ गए। वो भी अगेन दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस राइट, कि वो आप जितना करते जाओगे। एंड फॉर मी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर रील चलने का क्रेडिट मैं लेता हूँ तो फेलियर का भी मेरा ही है ना, कि हाँ ये नहीं पहुंची लोगों तक। So when something like that fails or when your attempt fails, how do you deal with that sense of desperation or that sense of crisis that comes? मतलब honestly I am not cool enough to ignore all of that. My wife has seen me being dejected for a couple of days कि यार shit यार ये नहीं चली, क्योंकि एक बार जब वो चीजें चलने भी लगती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको you start feeling कि अच्छा ऐसे तो मेरे पास बहुत आइडियाज है यार, अगर ये इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है which means कि मैं बढ़िया काम कर सकता हूँ। और बट ये कंटेंट वर्ल्ड इतना ज्यादा डायनामिक है ना, देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स कॉमिक्स हु हैव लर्न टू नॉट पे अटेंशन टू कमेंट सेक्शन एट ऑल, बट यू आर नॉट दोस। आई हैवंट लर्नड इट सो फार, मे बी आई विल हैव टू लर्न इट द हार्ड वे आगे है, कोई स्पिरिचुअल ऐसे इंटरवेंशन हो शायद, या क्योंकि और मैं जो दूसरे लोगों को देखता हूँ कि उनके पास और भी काम इतना ही है कि उनके पास ये वाला टाइम ही नहीं है। और मेरे को
मेरे को दोनों चीजें होती है, मेरे को मजा भी बहुत आता है, ऑनेस्टली आई एंजॉय। उसमें कुछ गलत फीडबैक है वो वाले आ रहे तो उसमें भी मजा आता है, कुछ लोगों को मैं जवाब देता हूँ, कुछ लोगों के साथ एंगेज नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, बट ऐसा उनको पूरा उससे अफेक्ट नहीं होना नहीं आता मेरे। आई विल गेट अफेक्टेड in those moments when you say getting affected, are you questioning your talent? Are you questioning? I do मेरे को ऐसा full ऐसा destructive mode में destructive mode नहीं, मतलब I don't act upon it, that I have learned कि ठीक है it's one of those, but I will be sad for a while, like the engagement will dictate my mood, वो होता है जो बहुत टॉक्सिक है, which is not... जो है टॉक्सिक। एंड वन मोर लाइक द प्रॉब्लम इज ऑल्सो द सिचुएशन कि अगर मैं नागपुर में ही होता ना, और क्योंकि जैसे ये लास्ट टाइम ये वाली रील डाली थी मैंने लास्ट मंथ या सो, या मतलब जस्ट अभी रिसेंट अक्टूबर में, तब फिर ये सब कमेंट्स आए, ये सब हुआ, और मैं यहाँ हूँ नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फक यार ये तो अब कोई बोलेगा कि बहुत ही चूतिया है ये वो ऐसा ऐसा, नागपुर का नाम खा एक ये तो पता नहीं लोगों को क्या, ये कमेंट तो मेरे को आज तक नहीं समझा है कि भाई नागपुर का नाम क्यों खराब कर रहे हैं। अरे मैं क्या मेरे मुंह से गॉस्पेल ट्रुथ सुनने निकले क्या लोग कि मैं कुछ, और इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, क्योंकि जब मैंने एक नागपुर की ये वाली रील बनाई थी कि नागपुर में क्या है खाने को, एंड देन देयर इज अ ब्रेथलेस वर्जन ऑफ पूरा कि ये चीज। I wanted to ask you, how did you do that? Bro, around 13, 14, 15 takes, but I wanted to do it. But you learned it. I learned it. You rehearsed it. I learned it, and वो जो स्कूल में भी मगअप करने के लिए जो निमोनिक्स बनाते थे, अच्छा निमोनिक्स बनाते, तो मैंने अपने दिमाग में स्टोरी बनाई थी। तो इफ यू रियलाइज इट, लाइक यू रियलाइज इट नाउ कि मैंने ईस्ट नागपुर से चालू किया था कि मैं घर से निकला हूँ, और घर से निकल के फिर मैं टिम्बरवॉन गया, ऐसा है। तो मैं मेरे दिमाग में पूरा सीए रोड चला था। हाँ और फिर बीच में ना, जैसा वॉइस एक्टिंग में भी सिखाते हैं कि सर्टेन वर्ड्स एक साथ नहीं बैठते, कि आप सौ के बाद सब बोलोगे अटक जाएगा, तो वो चेंजेस करने पड़े थे थोड़े बहुत, वो बोल के ही आया था, रियस किया था, बट वो हो गया था, फिर एक फ्लो में हो गया था। तो वो रील के बाद लोग लाइक दे वर फकिंग प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन, कि यहाँ वहाँ शेयर करे लोगों की देख बैंड शो नागपुर में देख क्या है ये। तो वो फिर उल्टा भी है कि फिर जब कहीं मैं, अगर अब आप जोक करे तो कोई चीज का तो जोक करे हो तो तुरंत आ जाते नागपुर का नाम खराब मत कर, ये मत कर। So was this feedback in your mind when you were making that joke कि now this is my time to like pay back or prove people wrong? For Nagpur, the खाने वाला when you did the breathless one? नहीं ऐसा नहीं, that was not the intention. And I know for sure, and I'm telling you this, ये तो मेरे ख्याल से ये पत्थर की लकीर है। जिस दिन आप सोच के करने जाओगे ना, कभी नहीं होगा। आउटकम डिसाइड कर ही नहीं सकते हो कि क्या, क्योंकि मैंने जब ये वाली भी जो गाँव वाली रील बनाया था, मुझे तो लगा था बहुत फनी रील है भाई, कि ये तो मजा ही आ जाएगा लोगों को, पर उसका पूरा उल्टा हुआ। I think you started writing more for the Bombay audience. That is what the... And that is happening because of the distance. But now I cannot solve for it. I can only learn to maneuver around ki... पर वो अच्छा भी होता है, मेरे को पर्सपेक्टिव भी बहुत मिलते हैं ऐसे कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नागपुर इन मुंबई, या मुझे बहुत बार स्टैंड अप शोज में भी ऐसे लोग मिले जो यहाँ नागपुर में भी मिले और उधर भी मिले, जिनकी शादियां ऐसे हुई है कि मुंबई की लड़की है, अच्छा, और नागपुर में शादी हो गई, तो दे आर लिविंग डबल लाइफ, तो दे आर लिविंग डबल, सो दे अंडरस्टैंड कि मुंबई की लाइफ भी पता है मेरे को, और नागपुर आ गई हूँ तो बोलती है कि मेरा पति मेरे को आपकी रील्स दिखाता है कि नागपुर का जो भी जानना है देख ले। तो वो सब वो बहुत ही, दोज आर द मोमेंट्स देन यू लिव फॉर, कि अच्छा इफ मैं whatever work I am doing, कॉमेडी में हंसा तो तुम रही हो लोगों को, बट उसके अलावा एक ऐसा, एंड विच इज द एंटायर जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो रिलेटेबिलिटी का जो पूरा मार्केट बना है, वो इसी बेसिस पे तो बना है ना, कि भाई हम भी ऐसे ही तो एज अ क्रिएटर दैट इज वेरी फुलफिलिंग ऑनेस्टली। So when you are creating these reels and when you are writing this, from the writing to the shooting to the editing, how much of the joke or the material changes? Has it ever happened that you envisioned something, you shoot it and then you edit it and the outcome is different? So depends upon the reel. अगर देखो, जैसे अगर ऐसी प्रॉपर स्केच रील है ना, जैसे एक वो वाला आइडिया था जो मैंने और रुमानी ने साथ में बनाया था, कि इनिशियली शी इज शॉक्ड एंड अनॉयड अ बिट कि कैसे बात करता है, बाय द टाइम she starts speaking like that. तो इसमें से मेरे पास आइडिया था और बीट्स थी, जैसा मैंने बोला कि आई राइट द बीट्स, की एक फोन पे बात कर रहा हूँ, एक हम लोग बाहर है कहीं बात कर रहे हैं, और सो इट वाज अ ब्रांडेड इंटीग्रेशन। आई थिंक
it was the one of the best branded integrations क्योंकि लोगों को पता नहीं चला कि integration. That is what we aim to objective do. And that is what I do for Viraj's reels also. Like when we are writing a brand, तो वो इंटीग्रेशन इतना सीमलेस हो जाना चाहिए कि लोगों का ऐड ना लगे. वही एम है, जो बहुत बार होता है, बहुत बार नहीं होता है. तो इसमें बहुत सीमलेसली हो गया था क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चला कि ये मिकीज का प्रमोशन हो रहा है. तो लोकेशन वाज मिकीज. सो फॉर दैट वी हैड नॉट रिटर्न एनी डायलॉग. वो सिचुएशंस थी. तो अब वो डायलॉग टाइम पे जब शूट भी कर रहा हूँ तो वो टाइम पे कुछ तो भी एल्विश भाई का चल रहा था तो वो जोक बोल दिया. सो यू विल नेवर नो. बट एडिट में बहुत सारी चीजें पता चलती है. दिस इज ऑल्सो सेइंग कि पिक्चर जो बनती है ना वो एडिट टेबल पे बनती है. मूवीज वो शूट वूट होके सब आ जाते हैं बट मूवी बनती है एडिट टेबल पे, विच आई रियलाइज एट अ स्मॉलर स्केल विद रील्स ऑल्सो. कि जब आप एक्चुअली देखते हो ना तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बहुत लंबा जा रहा है, ये बहुत वो जा रहा है. So you can clip the timing. You clip it off, you remove an entire chunk or then use different editing tools to merge it, whatever. वो case to case basis पे different होता है. But वही तो है ना वो मेरा और like हमारा ये ongoing joke भी है with Viraj, Arjun and all also and with Ankit also कि कहीं पे भी कुछ भी अटक गया ना और किसी ने अगर बोल दिया कि भाई ट्रस्ट द प्रोसेस तो छोड़ दिया बस. फिर इसके ऊपर यू कांट से एनीथिंग कि करो अभी व्हाट लाइक इफ व्हाटएवर इफ यू आर शूटिंग एट दैट पॉइंट कि कर शूट अभी जो कर सकते हैं वो करो बेस्ट पॉसिबल इन दैट मोमेंट इन दैट मोमेंट एंड देन विल सी एंड इट वर्क्स 100 out of 100 टाइम्स इट विल वर्क. वो वाला मैजिक और वो जो काम है ना वो मजेदार है, उसमें मजा आता है. व्हाट आर द प्लान्स इफ यू कैन रिवील अबाउट द जीएस पॉडकास्ट? इट्स कॉल्ड द वर्सेस पॉडकास्ट. द वर्सेस पॉडकास्ट. सो मैं सच में एक सेकंड के लिए अटक गया कि मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, पर बोल ही देता हूँ क्योंकि अभी ऑलमोस्ट आ ही गया. सो बेसिकली एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर आई डिड अ प्रोजेक्ट विद सोनी पिक्चर्स नेटवर्क. इट्स अ ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट विच आई एम होस्टिंग. इट्स कॉल्ड द वर्सेस पॉडकास्ट, जिसमें वी हैव 10 episodes, 20 guests. These are comics and content creators. Viraj is on it. Siddharth Shetty, he's a stand-up comedian, he's on it. Govind Menon, Saurabh Pant, Fatima Aisha, ऐसे बहुत सारे लोग हैं. सुमेरा शेख, 20 लोग हैं. तो it's a comedy podcast जिसमें we are trying to settle age-old debates whether this is good or that. So for example, mountain person की beach person, चाय या कॉफी, ऐसा. तो like once and for all this. Once and for all. Okay. And the best part about this podcast is कि इसका कोई outcome नहीं है. I am hosting it. I keep on giving random points to both the. तो basically जैसे stand up में. This was your idea? So me and a friend called Rishi who works with Sony, we had pitched it. It was Rishi's idea and then we developed it together. So we had pitched it last year to Sony. Sony is putting a lot of podcasts online. You can check. CID का उन्होंने पॉडकास्ट बनाया है. अच्छा. आहट का पॉडकास्ट बिकॉज दीज आर सम शोज जिसका ऑडियो वर्जन भी पॉसिबल है. तो एंड देन दे हैव अ लॉट ऑफ अदर फिक्शन नॉन फिक्शनल स्टोरीज गोइंग ऑन ओवर देयर. तो उसमें दे वांटेड टू डू कॉमेडी आल्सो एंड ऋषि हैड सीन मी इन द प्रीवियस कंपनी दैट वी वर्क टुगेदर एंड ही थॉट दैट आई वुड बी अ गुड फिट टू होस्ट दिस एंड पुल दिस ऑफ. और मेरी और उसकी भी बकचोदी मैच होती है. तो हमने पूरा पॉडकास्ट और पूरा बन चुका है, ऑलमोस्ट एडिट भी हो चुका है, सब हो चुका है. But it is a very small team who's trying to pull this off. इसीलिए like bandwidth issues और ये सब है. And at this point, I think it's in the last phase of coming out. So it's going to come out very soon. This is going to be on YouTube and Spotify. This will be on YouTube, Spotify, again reels and clips on other various and that platforms. is all. This is going to be produced by Sony. They're going to be taking care of. They are going to be taking care of everything. Okay. And we have shot like every episode was funny. बहुत सही शूट हुआ है. सोनी के स्टूडियो में ही हमने शूट किया था. जहाँ से स्पोर्ट्स broadcasting होती है. अच्छा, वहाँ पे. I got to shoot there and all these comic friends were very generous and cooperative enough to come and do this because they तो comedy में ही like stand up shows में भी बीच बीच में होते रहते हैं debate shows होते हैं. Comedy debate is a format. Okay. और उसमें like a roast or like a roast, like alt comedy, like roast, like anecdote. There is something called comedy debate. जिम कार का एक पूरा शो है इस पे नेटफ्लिक्स पे. मुझे नाम याद नहीं आया, बट इफ यू सर्च जिम कार तो एक मिल ही जाएगा जिसमें बैठ के वो लोग और
मैंने तो आपको जो एग्जांपल दिए वो बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे माउंटेन पर्सन या बीच पर्सन दिए, हमने मोस्टली ऐसे वाले लिए कि टेक्सटिंग और कॉलिंग, मैट्रिमोनियल साइट्स और डेटिंग एप्स, राइट। तो और उसमें से 3 राउंड्स है कि फर्स्ट राउंड में यू गिव योर साइड, सेकंड राउंड में यू अपोज लाइक से अगेंस्ट द अपोनेंट, थर्ड राउंड में रीबटल्स, और फाइनल में देयर विल बी अ स्कोर। तो वो स्कोर और ऑल ऑफ वो सब डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि इसका आंसर है ही नहीं कोई ये चीजों का। तो आई एम damn excited for this to come out. And so am I now. Yeah. Looking forward to that. तो और उसमें ना कॉमिक्स आया और उन्होंने मतलब like you have to watch the episode, hear the episode to know the kind of points they have put ये चीज को डिफेंड करने के लिए। One of the episodes was small town versus big cities. तो आप small town को कैसे डिफेंड करोगे? पर जो किया है मोहम्मद हुसैन was on that side. Okay. तो the way has done it was like hilarious dude, and ऐसे ही जैसे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हमने उसको बहुत ऑर्गेनिक रखा। I'm really looking forward to that, Jitesh. Yeah. Well, thank you so much for coming and honoring me, and if there is any feedback that you have, any review, please let me know right now. I'll do everything I can to make things right. No, bhai, I am glad. Thank you for having me here, because as I told you, the only reason I come as a guest or as a co-presenter or any podcast or something is because once you sit down and discuss these things is the day when you realize it's a very inspiring day, honestly. कि आज जब मैंने आपसे इतनी बात की ना, तो जो भी मेरा अभी जो भी कुछ डल फेस चल रहा था या मैं स्टक था कहीं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं यार ऐसे तो किया है यार काम, अपन ने यार करेंगे और आगे। So feeling good. So I'm going back with that feeling, and as such the feedback, keep on doing it. I hope to collaborate with you someday on like project, because I feel this is the first time we are talking. और जो लोग सुन रहे, जो लोग सुन ही रहे, देख तो नहीं रहे ये, but ये पूरा ऑर्गेनिक बातें हुई है, ठीक है? ये this is the first time we are also meeting. Hope to create something with you, man, soon. Thank you so much. Thanks a lot, bye. Thank you. If you learned something new from this episode of the Horsemouth podcast, do rate and review us on Spotify, Instagram, X, or wherever people engage with you the most.